الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال عليه الصلاة والسلام: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمنية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين، ولكن أوحي إلي أن سبحوا بحمد ربك وأكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قابل احترام بھائی اور بزرگ اور دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ کا فضل اور کرم ہے کہ اللہ جل شانہ و منوالہ نے ہمیں اپنا فضل سے پیدا فرمایا، جس کی وجہ سے آج ہم مخلوق ہیں۔ اللہ نے نہیں بنایا تو مخلوق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا ان پر، اللہ نے ہمیں بنایا۔ پھر یہی اللہ کا احسان ختم نہیں ہوا۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے پتھر بھی بنایا، درخت بنایا، اور ایسے ہی درندے اور پرندے بنایا، ان میں ہم کو نہیں پیدا فرمایا۔ خالق نے اپنا فضل سے انسان بنایا، پھر انسان میں بھی اللہ جل شانہ و منوالہ نے بہت تقسیم کیا۔ دوستو، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں ایمان والوں کی گھر میں پیدا فرمایا۔ دنیا میں آتے ہی ہم نے اللہ کی برائی سنی۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ تو دوستو، اللہ جل جلالہ و منوالہ نے جو نعمت بندہ کو عطا فرمایا، ان سارے نعمتوں میں سب سے بڑا نعمت جو ہے وہ نعمت ایمان ہے، کیونکہ انسان کی سارے چیز جو ہے دنیا کے، یہ سارا ان کے ساتھ چھوڑ دے گا، لیکن ایمان ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا۔ اسی لیے جس کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور دنیا میں کچھ نہیں ملا، پھر بھی اس کو دنیا اور آخرت کی بھلائی مل گیا۔ دوستو، دنیا میں کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اس کا زندگی۔ نبی اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرا بستر زمین ہے اور کچھ نہیں ہے، کمبلی وغیرہ کچھ نہیں، میں آرام کرتا ہوں زمین پر، اور میرا تکیہ میرا ہاتھ ہے، اور میرا سالن روٹی کھانے کے لیے بھوک ہے، دوسرا کسی چیز کا ضرورت نہیں ہوتا، بھوک سے میں کھا لیتا ہوں، اور پھل میوہ میرا درخت کی پتے اور گھاس، صبح شام میں کرتا ہوں، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں، پھر بھی میں پورے دنیا میں سب سے زیادہ غنی ہوں۔ حواری نے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے، آپ کے پاس ہے نہیں کچھ اور پھر آپ ہو کہ آپ غنی دنیا میں کیسا؟ اس اعتبار سے کہ میں اللہ کی سوا اور کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی کا ضرورت نہیں، دنیا میں کسی کا محتاج نہیں ہے، صرف اللہ کا محتاج ہے۔ تو دوستو، ایسا بھی زندگی گزارے، لیکن ایمان مل گیا تو ایمان کی برکت سے اس کو دنیا میں دل کی سکون ملے گا۔ اللہ ایمان والوں کو دل کا سکون عطا فرماتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جب دل میں اللہ ہوتا ہے تو دل اطمینان ہو جاتا ہے۔ اور دوستو، جب ایمان والا دنیا سے رخصت ہوتا ہے ایمان کے ساتھ تو وہ خوشی کے ساتھ جاتا ہے۔
अल्लाह का रहम और करम होता है, वो अल्लाह की फजल और करम से, रहम से वो दुनिया से खुशी के साथ रुखसत हो जाते हैं। हजरत सैयदना बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका इंतकाल हो रहा है। उनका बीबी मोहतरमा शाम की थे तो रो रहा है और उन्होंने फरमाई कि आए मेरा शोहर का तकलीफ परेशानी। तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब में फरमाया, नहीं नहीं वो तरफ, आज तो मेरा खुशी का दिन है। अभी जो मौत है और मौत का वक्त आया मेरा, ये खुशी का वक्त आया। क्यों कि मैं तो जाके मेरा दोस्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों से मिलूंगा, इसीलिए मौत से मुझे दुनिया में और कौन सा चीज है जो मुझको खुश करे। तो खुशी के साथ ईमान वाला जब दुनिया से रुखसत होता है ईमान पर, तो वो खुश होता है और ईमान पर जा रहे हैं इसका अलामत जाहिर होता है। उसकी पेशानी में पसीना आ जाते हैं, आंख से आंसू निकलता है। क्यों कि उसको अल्लाह जल्ला शानु की तरफ से फिरिश्ता ने खुशखबरी सुनाता है और उसका जो जगह जन्नत, उसकी जन्नत को उनके सामने पेश करते हैं। वो उस जन्नत को देखकर अफसोस करते हैं कि हाय अफसोस, मैंने थोड़ा सा अमल किया दुनिया में, ये थोड़ा सा नमाज, कुछ नमाज रोजा ऐसे ही कुछ गश्त कर लिया, 3 चिल्ला दे दिया, आज ज्यादा से ज्यादा साल लगाया और थोड़ा सा गश्त और ऐसा ही मशवरा, इस पर अल्लाह ने मुझे इतना दिया, पूरा जिंदगी क्यों नहीं लगाया? अगर पूरा जिंदगी मैंने इसके पीछे लगाता तो मुझे कितना बड़ा जन्नत और कितने खुशी का चीज मिल जाता। तो इसको देखकर उसने अफसोस करता है। इसके अफसोस पर उसकी पेशानी में पसीना आ जाता है और आंखों से आंसू निकलता है। तो दोस्तों, खुशी की साथ दुनिया से रुखसत ईमान वालों को। दोस्तों, खबर में ईमान वालों को ईमान की बरकत से जन्नत की बिस्तरा मिलेगा, जन्नत की लिबास। ये दुनिया की जितना कीमती भी हो, कफन या घटिया हो, ये सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इंतकाल की वक्त जब आया तो इन्होंने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा को वसीयत किया कि देखो मुझे पुराने कपड़ा में दफन कर दो। तो उम्मुल मोमिनीन ने फरमाई कि अब्बाजान क्यों, हम नए कफन तो आपको दे सकता है, मैं हो, मेरा भाई है, हम दे सकता है नया, वजह क्या है? तो इन्होंने फरमाया देखो ये जो पुराना और नए कफन, इसका कोई एतबार नहीं। दुनिया से मैं ईमान के साथ आखिरत में पहुंच गया कब्र में, तो फौरन इस कफन को खोला जाए और जन्नत का कफन मेरे लिए आ जाएगा। अगर नाउज़ुबिल्लाह ईमान की बगैर दुनिया से गया, ईमान जाए हो गया, तो कब्र में जाते ही जहन्नम की लिबास मुझे पराया जाएगा। इसीलिए तुम्हारे नए और पुराने का कोई एतबार नहीं, ये नए का ज्यादा हकदार जिंदा है, तो इसीलिए उन्होंने को पुराने कपड़ा ही में कफन दिया गया। तो दोस्तों, ईमान की बरकत से कब्र में भी आराम, राहत, इज्जत। क़यामत के दिन ईमान वालों को वहां भी और खुशी है। अल्लाह की आरश की साया में उसको ईमान की बदौलत जगह मिलेगा, सीधे हाथ पर नामाए अमल आएगा और वो कहेगा हाँ वो मुकराओ किताबिया, ये मेरा नामाए अमल देखो, पढ़ो, कितने खुशी की चीज है इसमें। तो दोस्तों, और ऐसा उसको नहीं मिलेगा, ईमान वालों को बहुत शान से मिलेगा। बंदा को अल्लाह के सामने पेशी होगा, फिरिश्ता उसकी नामाए अमल को सीधे हाथ पर देगा और एक चीख ऐसा जोर से लगाएगा आवाज कि फलाना की बेटा फलाना कामयाब हो गया। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी इंसान तक सारे मैदान माशर में जितने इंसान सब इस आवाज को सुनेगा कि फला एक अल्लाह के बंदे कामयाब हो गया। तो ये कितने खुशी की बात। फिर जब फुलसिरात में ईमान वाला हाजिर हो जाएगा तो फौरन वहां उनकी नूर जाहिर होगा। यौम तरल मुमिनीना वल मुमिनात यस्आ नूरुहुम बैना अयदीहिम व अयमानिहिम। दोस्तों, सामने दाएं ईमान का नूर होगा और इसी ईमान की नूर के पीछे चलते चलते वो जन्नत तक पहुंच जाएगा। फुलसिरात उसका कोई
कठिन भी नहीं होगा, परेशानी का कोई सबब नहीं बनेगा, खबर ही नहीं रहेगा, वो तो जन्नत की दरोजा पर पहुंच जाएगा। फिर ईमान की बरकत से जन्नत उसको हमेशा के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालुहु ने हमें ईमान वालों की घर में पैदा फरमाया और ईमान की दौलत से अल्लाह ने हमें नवाजा। इसीलिए दोस्तों, इस पर ही अल्लाह का एहसान खत्म नहीं। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालुहु ने पिछले नबियों की उम्मत में हमें नहीं पैदा फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत में नहीं लाया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम, किसी नबी की उम्मत में हमें पैदा नहीं फरमाया। सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हमें पैदा फरमाया। और अल्लाह ने कुरान में हमका खैरुल उम्म, बेहतरीन उम्मत अल्लाह ने नाम रखा। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दुनिया में सबसे पीछे आया हो, लेकिन जन्नत में सबसे पहले तुम दाखिल हो जाओ, शुरू से जन्नत तुम होगी। तो दोस्तों, फिर इस पर अल्लाह के एहसान खत्म नहीं, इसके ऊपर अल्लाह ने और एहसान फरमाया। क्या है कि अल्लाह ने हमें अवालीन में पैदा नहीं फरमाया, अल्लाह वालों ने फरमाया कि हमें आखिरीन में पैदा फरमाया। इस उम्मत के अवालीन जो है सैयदना अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ी अल्लाह अन्हुम है। लेकिन दोस्तों, इनका फजीलत बेहद है, बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों, उस जमाना में अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद, ये लोग भी था। हम जैसे आराम और राहत की तलाश करने वाले और अपना नफ्स के पीछे चलने वाला, हो सकता है उन पर जो मुजाहिदा और कुर्बानी आया वो हम पर आता तो हम नाउज़ुबिल्लाह उनके साथ हो जाते हैं। ऐसा कोई इब्तिला में अल्लाह ने हमें नहीं डाला। बगैर इब्तिला और इम्तिहान के हमको सैयदुल कौनैन की उम्मत में अल्लाह ने शुमार कर लिया। फिर दोस्तों, और कितने बड़े बात है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आरज़ू फरमाया, तमन्ना किया, एक मर्तबा फरमाया कि काश मैंने मेरे भाइयों को देख लेता। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हम लसना इख्वानना, क्या हम आपकी भाई नहीं है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंतुम असहाबी, तुम तो मेरा सहाबी हो, लेकिन मेरा भाई वो है जो मेरे बाद आने वाला है और बगैर देखे मुझे मेरे ऊपर ईमान लाने वाले हैं, वो है मेरा भाई। तो अल्लाह की कितना बड़ा चीज है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको भाई बनाया, देखने की आरज़ू फरमाया। सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, ये वो उम्मती आपको नहीं देखा और आप भी उनको नहीं देखा। क़यामत के दिन सारे नबियों की उम्मत वहां हाजिर होंगे, तो आप कैसे आपकी उम्मत को पहचानेंगे? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मैदान में 100 घोड़ा है। घोड़ा मालूम है ना, सब घोड़ा सुर्ख, एक घोड़ा सिर्फ उसमें दूसरा कलर है, उसकी सर में, पेशानी में सफेदी, पैर में सफेदी। तो ये 100 घोड़ा में वो घोड़ा वाले अपने घोड़ा को पहचान के निकलने में कोई तकलीफ होगा? तो सहाबाए किराम ने फरमाया नहीं, क्योंकि वो तो सारे एक कलर की है, एक रंग है उनका, सारे के सारे सब सुर्ख है, किसी में सफेदी है नहीं, इसमें ही है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यातूना उम्मती यौमल क़ियामत गुर्रम मुहज्जलीन मिन असारिल वज़ू, मेरा उम्मत क़यामत के दिन जो आएगा उनकी वज़ू के आज़ा से नूर चमकता हुआ होगा, और ये देखकर मैं पहचान लूंगा कि ये मेरा उम्मती है। दोस्तों, कितना बड़ा बात है। इसी वजह से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उन्होंने अपने हाथ धोता तो बगल तक चले जाते। शागिर्दों ने पूछा कि इतने दूर तक क्यों? ये तो नहीं है, दरमियानी में है, काफी है आपके लिए। फरमाया यतीलु गुर्रती, ताकि क़यामत के दिन मेरा नूर ज्यादा चमके, ज्यादा लगे, इसलिए। तो वो उनके लिए है, हर एक के लिए नहीं। तो दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा वालों ने हमें आखिरीन में बनाया, ईमान दिया, और उसके बाद अल्लाह की बड़ा फजल है कि दुनिया के कितने मुसलमान भी है, कितने इंसानों को हम देख रहे हैं कि कितने मुसलमान हैं और किस को किस चीज के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया।
किसी को दोस्तों अल्लाह ने दुकान के साथ जोड़ दिया, उसको दिन और रात उसी का फिक्र है, और वो दिल में ऐसा घर करके गया कि कोई साथी उनके कोई भाई जाए, दोस्त जाए और उसकी दुकान का तारीफ करे कि आपकी दुकान तो बहुत शानदार है, तो वो उसको करीब बैठाते हैं और चाय पिलाते हैं, खुश हो जाते हैं। किसी को अल्लाह ने गाय बैल की फार्म के साथ जोड़ दिया, उसका दिन और रात उसी के पीछे, इसका तारीफ सुने तो खुश होता है, इसकी कोई बुराई सुने तो नाराज होता। किसी को अल्लाह जल्ला शानो ने दोस्त के साथ जोड़ दिया, उसका पूरा दिन और रात दोस्त के पीछे, एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, घूम रहे हैं। दोस्तों इसे किसी का और किसी चीज के पीछे जोड़ दिया, उसका दुनिया आखिरत का सारा चीज खत्म। लेकिन अल्लाह अपने फजल करम से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम की जमाना से इतने दूर की बात भी हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से जो इस उम्मत को मिला, नबी वाला मेहनत, अल्लाह ने हमें उस नबी वाला मेहनत के साथ जोड़ दिया। दोस्तों इसीलिए इसका शुक्रिया हम अदा करें तो अदा नहीं हो सकता। अब दोस्तों हमको जो अल्लाह ने ईमान दिया, हम ईमान वालों पर तीन चीज बहुत जरूरी है। सबसे पहला चीज जो है कि दोस्तों ईमान तो असल सरमाया है इंसान का। जो असल ईमान वालों पर सबसे जरूरी चीज है कि आपने ईमान का हिफाजत करें। ईमान वाला ईमान से गाफिल नहीं हो सकता, हर वक्त अपने ईमान का फिक्र हो। ईमान से गाफिल हो तो ईमान का दुश्मन उसका खत्म कर देते हैं। जब दुनिया में इंसान आया उनके साथ उनके ईमान का दुश्मन भी आया। इसीलिए दुनिया में इंसान की जान का दुश्मन जो होता है वो सोता है, आराम करता है, एक जगह से दूसरा जगह जाता है, कभी दुश्मनी भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों ईमान का जो दुश्मन है वो रात और दिन कभी वो गाफिल नहीं होता, वो इन ईमान वालों की दुश्मनी में लगे रहते हैं। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने जिनको ईमान दिया, ईमान की कीमत जिनके सामने था, इन्होंने हर वक्त अपने ईमान का फिक्र कि हमारा ईमान बाकी रहे। इसीलिए ईमान वालों पर यह फर्ज है कि अपने ईमान का हिफाजत करें, ईमान का ख्याल रखें। अबू मुलैका ताबीन, अबू मुलैका रहमतुल्लाह अलैहि, इन्होंने फरमाया कि मैंने 30 सहाबा इकराम की सहबत उठाई, इनसे हमने दीन सीखा, लेकिन वजदना कुल्लुहुम यखाफून अला ईमानिहिमुन निफाक। ये सारे सहाबा इकराम जिन पर अल्लाह राजी है वो अपने ईमान के बारे में डरते हैं कि हाँ क्या हम ईमान पर है या मुनाफिक हो गया। कितने बड़ी बात है। लेकिन आज हमारे क्या हाल है, क्या हम सुबह शाम हमारे ऊपर रोजाना सूरज तुलू हो रहा है, गुरूब हो रहा है, क्या हमने हमारे ईमान के बारे में कोई ऐसा फिक्र है कि भाई हमारा ईमान का क्या हाल है। हाँ असल में हम ईमान वाले हैं या ईमान से हम निकल गए। इससे और बड़ी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के दरमियान हाजिर है मदीना में। हजरत हंज़ला रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनका किस्सा मशहूर है, फज़ाइल अमल में भी है। दोस्तों घर गया, बीवी बच्चा में खाने पीने में थोड़ा सा मशगूल हुआ, इतने में उनका ईमान का फिक्र पैदा हो गया। तो देखा कि मजलिस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब था मजलिस में, मस्जिद में, तो उनके ईमान का जो कैफियत था वो अभी बाकी नहीं है, थोड़ा सा। लेकिन हमारे तो ऐसा नहीं कि घर गया तो घिर गया, सब खत्म, क्या आखिरत क्या ईमान, सब भूल के दुनिया ही दुनिया, ऐसा नहीं दोस्त, थोड़ा सा तो फर्क आया। इतने में उन्होंने खाना पीना सब छोड़ा और चिल्लाना शुरू किया। फरमाया नाफका हंज़ला, हंज़ला तो मुनाफिक हो गया। दोस्तों ये नबी वाला मेहनत जो है ये अपने ईमान को हिफाजत करने की मेहनत है। इसमें जितना हमारा जान माल लगेगा इतना हमारा ईमान की हिफाजत का फिक्र पैदा होगा। और ना तो मुसलमान लाखों हो गए, अरे भाई मुसलमान ईमान तो है और क्या, उसकी बात क्या। लेकिन जितना ईमान वाला का जितना ईमान मजबूत उतना ही उनकी ईमान की हिफाजत का फिक्र। घर में ठहरा नहीं रहा, वही अपने घर से निकल पड़े और चिल्ला रहे, क्या कहते हैं कि नाफका हंज़ला, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। चिल्लाता चिल्लाता हुआ दोस्तों रास्ता में उम्मत की सबसे बड़े शख्सियत हजरत सैयदना अबू बकर से मुलाकात हो गया। अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि क्या हो हंज़ला, तुम क्यों चिल्लाते हो।
तो फरमाया कि मैं तो मुनाफिक हो गया। बोले सुभान अल्लाह, आप कैसे मुनाफिक हो गया, आप तो सच्चा पक्का मुसलमान है। तो उन्होंने फरमाया कि जब मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हो, जन्नत और जहन्नम की बात सुनता हूँ, तो दिल की जो कैफियत, ईमान का जो कैफियत है, घर में जब बीवी बच्चा में होता हो तो बाकी नहीं रहता, थोड़ा फर्क हो जाते हैं। तो सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी फरमाया, अरे हमज़ला, तो मैं भी यही बीमार में मुब्तला, मैं भी ही मुनाफिक हो गया। कौन शख्स है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में फरमाया कि सारे नबियों की उम्मत में से सबसे पहला उम्मत जो जन्नत में जाएगा मेरा उम्मत, और मेरा उम्मत कोई जन्नत में नहीं जा सकता अबू बकर से पहले। फरमाया सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा। और दोस्तों, सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे शख्सियत है कि जिनके लिए जन्नत के 8 दरवाजा खोल दिया जाएगा, 8 दरवाजा से उनको इस्तकबाल होगा। ऐसा शख्सियत फरमा रहे हैं कि मैं मुनाफिक हो गया। दोनों भाग के मस्जिद में आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ। दोस्तों, इसीलिए हमारा ताल्लुक मस्जिद से हो, इसीलिए मस्जिद में मशवरा होता है। दोस्तों, इसीलिए मस्जिद में हम जो बैठते हैं, तालीम की हल्का होता है, और इसे घर घर जाके हम जो लोगों को समझाते हैं, ईमान की बात, मकसद यही है ताकि हमारा ईमान का हिफाजत हो जाए। दोस्तों, फौरन आके मस्जिद में हाजिर हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए हंज़ला, तुझे क्या हो गया? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हंज़ला तुम मुनाफिक हो गया। अजीब बात, कैसे तुम मुनाफिक हो गया? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जब मैं आपके सामने होता हूँ तो मेरे ईमान का ये कैफियत, घर में जाता हूँ बीवी और बच्चे में तो खाने पीने में मशगूल होता, तो ये हालत बाकी नहीं रहता। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझ गया कि ये तो ईमान, हंज़ला की ईमान का फिक्र है, ईमान की फिक्र इतना गालिब है और उनका ईमान इतना कवी है कि थोड़ा सा फर्क भी बर्दाश्त नहीं होता। तो फरमाया कि हंज़ला, तुम्हारा जो हालत और कैफियत मस्जिद में होते हैं, वही हालत और कैफियत तुम्हारा घर में भी बाकी रहता, तो फिरिश्ता तुम्हारे बिस्तर पर तुम्हारे साथ मुसाफा करता। अरे मर्रतन कररतन ये हालत होगा, फिर वो हालत आए तो फिर इस हालत की तरफ आओ। तो इसीलिए दोस्तों, हमारे लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने बहुत बड़ा एहसान किया कि हमें वो ईमान की हिफाजत की मेहनत में लगा दिया और दूसरे कामों में नहीं लगाया। फिर दोस्तों, हमारे जिम्मा में और एक चीज है, और वो चीज क्या है कि वो हम हमारे ईमान को बढ़ाने का फिक्र करें। ईमान तो ऐसा चीज है कि इसको बढ़ाने का फिक्र हो तो वो बढ़ता है, और इससे गाफिल हो जाता है तो घटता है। मुसलमान है, नाम भी मुसलमान है, नाम अब्दुल्ला, अब्दुल अजीज, अब्दुल रहमान, ये नाम तो ठीक है, लेकिन काम में इस्लाम का करीब नहीं। मुसलमान है या गैर मुसलमान फर्क भी नहीं है। क्यों? ईमान तो है, लेकिन इनका ईमान कमजोर होते होते इतना कमजोर हो गया कि उसने उनको अल्लाह के हुक्म पर और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर खड़ा कर नहीं सकता। इनका हालत क्या हो गया? ना हराम से बच सकते, ना फरमानी से बच सकता, गुनाह से बच नहीं सकते। ईमान, ऐसा ईमान कमजोर हो गया कि उसकी ईमान ने उनको नाफरमानी से नहीं रोकता। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, इनका ईमान का हालत ऐसा ही है कि एक आदमी बीमार है, हॉस्पिटल में, ये उसको लेटाया हुआ है, बिस्तरा पर है, और उसकी दवा करीब रखा हुआ है, सारा चीज उसके पास है, लेकिन उनके अंदर इतना ताकत नहीं कि वो दवा लेकर हाथ से, अपना हाथ से वो खाए या दवा पिए। लेकिन वो आदमी मुर्दा है या जिंदा है? जिंदा है, लेकिन वो जिंदा तो है, किसी काम के नहीं है, नाम के जिंदा है। बिल्कुल ऐसा ही आज हमारा हाल यही बन गए। ना हमारे ईमान ने अल्लाह की नाफरमानी से रोकता है, ना अल्लाह के हुक्म पर हमें डालता है। तो इसीलिए हर मुसलमान पर यह फर्ज है इतना ईमान हासिल कर ले, मेहनत करके इतना ईमान बनाए कि जिस ईमान ने उसको अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे और अल्लाह की नाफरमानी से रोक दे। सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये ईमान हासिल किया। तो इनके ऊपर नमाज तो छोड़ना, रोजा छोड़ना, ये तो बहुत बढ़िया बात है। सुन्नत भी उनसे फौत नहीं होता। दुनिया की जिस माहौल में भी गया, हजरत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने सुन्नत को भी नहीं छोड़ा।
इनके पास अल्लाह और अल्लाह की रसूल सबसे ज्यादा महबूब, अल्लाह की हुक्म और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सब उनके पास सबसे ज्यादा महबूब। दुनिया की सारे चीज को छोड़ सकते लेकिन हुजूर की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। जिस माहौल में जाए, ये ईमान की ताकत की बरकत से होता है। सहाबाए किराम जब ईरान पहुंचे तो हजरत सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने ईरान फतह होने से पहले चावल अपने आंख से नहीं देखा, सुना है लेकिन खाया भी नहीं, देखा भी नहीं। सीरत में है सहाबाए किराम सब ईरान में दाखिल हुआ तो एक बाग में पहुंचा तो बाग वाला भाग गए, वो गैर मुस्लिम था, मजूस हो, भाग गया। खेती वाला भाग गए तो सहाबाए किराम को एक बड़ा बैग मिला जिसमें जुप्पूर है, तो उन्होंने खुला तो देखा ये क्या चीज है, गंदम भी नहीं है, मक्खी भी नहीं है, ये क्या चीज है। उनको पहचानने, वो नहीं पहचाने तो इसको उठा के पूरा बैग ले गया आमिर साहब के पास। आमिर साहब को भी मालूम नहीं है कि ये क्या चीज है। तो फरमाया कि भाई आमिर साहब एक घोड़ा ले आओ, तो घोड़ा लाया, घोड़ा के सामने पेश किया तो इस घोड़े ने आराम से खाना शुरू कर दिया। खा के भाई ये तो सारा खा जा रहे हैं, मरता नहीं। इन्होंने समझा पहले कि ये छोड़ के कि हम खा के मरे, तो देखा कि ये तो जानवर नहीं मर रहे। कहा कि भाई रुको रुको उसको। फिर एक ईरानी को पकड़ के लाया, तर्जुमान लाया, पूछा ये क्या चीज है, तो इसने कहा अरुज, इसी का नाम है चावल। सहाबाए किराम का सुभान अल्लाह, यही चीज है अल्लाह के रसूल ने हमें खबर दे के गया, चावल। तो इस हालत में सहाबाए किराम ईरान में पहुंचे तो जमात किया ईरान के शाह ईरान किसरा को दावत देने के लिए। तो उसने बड़ा दस्तरखान लगाई इनके इकराम के लिए, और दूर से वो देख रहा है कि मुसलमान ने तो सहाबाए किराम ने ऐसा शानदार दस्तरखान देखा ही नहीं कभी, तो क्या करता है इस खाने के सामने। तो खाना शुरू हुआ तो एक की लुकमा दस्तरखान पे गिर गया, तो साहबी ने इस लुकमा को उठाया खाने के लिए। तो दूसरे एक ने, शायद वो ताबीन हो गया या पीछे वाले, इन्होंने ऐसे ही हाथ से उनका हरकत दिया। तो उसने पूछा, साहबी ने, क्या हुआ? बोले तुमको मालूम नहीं, ये अरब नहीं है, ये तो ईरान के शाह ईरान की दस्तरखान है। वो तो कहेगा कि हम तो खाने पर की ललचा है, हमारे अंदर लालच है और हम इसके हारिस है। तो साहबी बहुत गुस्सा हो गया और फरमाया तुम क्या कहते हो मुझे? अनत्रुकु सुन्नत हबीबिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिमर्ज़ात हाज़ल हमक़ा, इन बेवकूफी के लिए, इनको खुश करने के लिए मैं मेरे हबीब का सुन्नत छोड़ दूं? ये हालत था। आज हमारा ईमान का क्या हाल है हम खुद ही देखें। किसी शादी की मजलिस में गया तो सुन्नत कहा जाते हैं, किसी और माहौल में घिर गया तो उसमें क्या हमारा हालत होता है। ये ईमान की कमजोरी का दलील है। इसीलिए दोस्तों ये जो तहरीक ईमान, ये दावत वाला मेहनत चलाई जा रही है, इसका मतलब यही मकसद यही है कि हमारे ईमान में कुव्वत आ जाए कि हर हाल में हम तो अल्लाह के हुक्म को पूरा करेंगे, हम तो अल्लाह की जिंदगी चलाएंगे अल्लाह के हुक्म को देखकर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को देखकर। इससे चाहे बीवी खुश हो या नाराज हो, औलाद खुश हो या नाराज हो, मेरे माहौल क्या कहे, मेरा बस्ती वाला क्या कहे, ये ईमान वाले की देखने की चीज नहीं है। ईमान वाला तो वो देखेगा कि अल्लाह क्या कहता है, मेरा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हालत में मुझे क्या बता के गया। ये है ईमान का ताकत का बात। और सहाबाए किराम को ऐसा ईमान हासिल हो गया, ऐसा ईमान उनको भर गया कि उन्होंने हर हाल में अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ना आसान। सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम शराब का बहुत आदी था, बहुत जमाना से। अरब वाले फख्र करता था जाहिलियत के जमाना में कि हमारे घर में इतने पुराने शराब है और शराब का मजलिस लगता है इनका। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हमारे घर में मेहमान आया, मैंने इनको शराब तकसीम कर रहा हूँ। जैसा कि कोई मेहमान आया, शरबते चाय लगता है तो शराब लगता था। इन्होंने शराब पीने की, कोई पी रहा है, कोई हाथ में लिया, इतने में आवाज हुआ। फरमाया कि भाई अनस देखो बाहर में क्या आवाज हो रहा है। उन्होंने आके सुना कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान करने वाला ने ऐलान कर रहा है कि अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। फरमाया अनस रज़ी अल्लाह अन्हु, बस ये बात लेकर मैं जब गया और इनको जब सुनाया तो जो पी रहा था उन्होंने फौरन अपने मुंह से बस उसको फेंक दिया, हाथ में जो था वो भी फेंक दिया। जिन्होंने पिया था वो अपने अंदर से निकालने की कोशिश में लग गया।
फरमाया बस जब मैं मदीना की गली में निकला तो देखा कि शराब का सैलाब आया, जिनके घर में था वो सारे के सारे रास्ता में ढाल दिया। फिर यह ही खत्म नहीं हुआ बात, फौरन भाग के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरबार में हाजिर हुआ और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, जिन बर्तन में हम शराब रखते थे इसका इस्तेमाल हमारे लिए जायज है या नहीं? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। मिशका शरीफ में लंबा हदीस है। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, इब्तिदा में ये सारे चीज को से मना फरमाया था कि इनके दिल से भी उसका मोहब्बत और इसका जिक्र भी चले जाए। फर्दा की हुक्म नाजिल हुआ तो दोस्तों जब ऐलान हुआ, मुसलमान सहाबियत में से एक वो घर वापस आ रहे थे, करीब पहुंच गए थे, इतने में आवाज सुनी तो रास्ते के किनारे में बैठ गई, बच्चा को भेजा कि चादर ले आओ, चादर ले आया, अपना बदन को ढाका, फिर वो घर में पहुंचे। शोहर ने कहा कि आ जाते, तो क्या जवाब दिया कि हम जब अल्लाह की हुक्म हमारे कान में पहुंच गया, इसके बाद मैं घर में आऊं, इतने में मेरा मौत आ जाए तो मैं तो अल्लाह की नाफरमान बनकर अल्लाह के दरबार में हाजिर हूं। दोस्तों और भाइयों, आज कितना बातें हो रहा है, कितना कानून बनाया जा रहे हैं, फिर भी मुसलमान इस पर, ये फर्ज है औरत के लिए लेकिन अदा नहीं कर सकता। और कितना हुकूमत का कोशिश है कि मुसलमान का बच्चा ये हराम से बच जाए, ये शराब से निशा से दूर रहे, लेकिन क्यों कि हमारे ईमान इतना कमजोर हो गया, जिस ईमान ने हमें अल्लाह के हुक्म पर खड़ा नहीं कर रहे, अल्लाह की नाफरमानी से हमको नहीं बचा सकते। तो इसीलिए दोस्तों इसी ईमान के पीछे मेहनत हो, ताकि मेहनत करते करते हमारा ईमान भी जैसा कि सहाबा इकराम में कि ईमान मजबूत और ताकत रहता है, वो ताकत पैदा हो जाए। तीसरा, हर ईमान वालों के लिए दोस्तों जरूरी है कि अपने ईमान पर खात्मा हो। ईमान पर गया तो उसका कोई परेशानी नहीं है, और बगैर ईमान के आखिरत में गया तो उसका कोई सहारा नहीं है। मरते ही आखिरत की सारे अज़ाब शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों शैतान का आखिर दम तक बंदा पर कोशिश होगा कि कैसे इसको क्या करे, एक बेईमान बनाए, इनके ईमान को लूट ले। इसीलिए दोस्तों जो वाकया है, हजरत इमाम अहमद इब्न हम्बल, बहुत बड़े शख्सियत उम्मत के इमाम अहले सुन्नत जिसका लक़ब है, जिन्होंने अल्लाह के लिए, अल्लाह के दीन के लिए, हक के लिए कितना बड़ा कुर्बानी दिया, सीरत की किताबें भरा हुआ है, इनका इंतकाल हो रहा है। शागिर्द है, बेटा है करीब, इन्होंने उनको तलकीन किया ला इलाहा इल्लल्लाह। इन्होंने जवाब में फरमाया इलालान ला, अभी नहीं। सब घबरा गए, खत्म। जिस शख्स ने अपना जिंदगी को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, इतने जिल्लत उठाई और इतने तकलीफ बर्दाश्त की, और अब ईमान के बाद ईमान के साथ आखिरत में जाना, और इस वक्त इन्होंने कहा कि अल्लाह ला, अभी नहीं तो किस वक्त के लिए कलमा। इतने में फिर उन्होंने दो आँख खोल दिया, उनको लहरा पड़ गया मौत का। अभी आँख खोला, फिर बेहोशी तारी था, बेहोशी न गया तो फरमाया फौरन कि अब बजान, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, आपने फरमाया अभी नहीं, क्या मतलब, क्या हुआ? बोले तुमने भी सुन लिया? बोले हाँ। बोले शैतान लाइन मेरे पास आया और ये कह रहा है कि आए अहमद, आपको तो मुझसे नजात मिल गया। मैंने कहा कि नहीं, तुझसे मैं अभी तक इत्मीनान नहीं हो, नजात मुझे नहीं मिला, क्योंकि मेरे हुक्म में अभी तक जान है। जब कलमा के साथ, ईमान के साथ हलकम से ईमान गुजर करके चले जाए तो फिर तुझसे मैं अमान में हो, इत्मीनान में हो। अल्लाह वालों की ऐसा फिक्र था। तो दोस्तों हमें वो फिक्र भी आज मौकूफ है। अरे क्या मौत आ जाए तो ऐसा मर जाएंगे, मसला ऐसा नहीं। दोस्तों मौत तो ऐसा सख्त है कि एक साथ 100 तलवार एक आदमी में लगाए, आदमी पर चला दे तो उनको जितना तकलीफ इससे भी ज्यादा, जिंदा बकरे की चमड़ा को उतार दिया जाए इससे भी ज्यादा तकलीफ। लेकिन ईमान वालों को, जिन्होंने जिंदगी अपना ईमान पर गुजारी और ईमान की तकाजा पर अपने जिंदगी को उठाया, तो दोस्तों उसका तो मौत ऐसा आसान होगा जैसा कि आटा के अंदर से बाल को निकालना, आराम से इस दुनिया से हंसता हुआ चले जाएगा, जैसे कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु गया। तो दोस्तों
अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अल्लाह अपने फजल से करम से ना हमारा कोई ऐसा अल्लाह के ऊपर हमारा हक या हम पर ऐसा आया या हम ऐसे की लाए, फिर भी अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने अपना करम से हमें वो ईमान की मेहनत अता फरमाया। जिस मेहनत के जरिया से ईमान का हिफाजत भी होता, जिस मेहनत के जरिया से दोस्त ईमान बढ़ता भी रहता है और इसकी बरकत से इंशाअल्लाह खातिमा बिल खैर भी होगा। दोस्तों, असल इंसान के लिए ईमान है। अगर ईमान ना हो दुनिया सब मिल जाएगा, पूरी दुनिया का बादशाह नमरूद बन जाए, नमरूद जैसा हुआ, लेकिन ईमान नहीं है तो सबसे बड़ा मुसीबत उसको दुनिया में हर वक्त परेशानी रहता है, इसके दिल में सुकून कभी नहीं होगा। सारे दुनिया का बादशाह भी बन जाए लेकिन सुकून नहीं, मरते वक्त जिल्लत की मौत, जैसा कि नमरूद जलील होकर मरा, फिरौन जलील होकर मरे, कारून दुनिया के बड़े मालदार जलील होकर मरे, हामान वज़ीर आला था फिर भी जलील होकर दुनिया से गया ईमान ना होने की वजह से। और कब्र में जाते ही वो जहन्नम की बिस्तरा और जहन्नम की लिबास उसको मिलेगा ईमान ना होने की वजह से। और क़यामत के दिन उसको बाएं हाथ में नामाए अमल आएगा और उसको अल्लाह की चेहरा देखने का मौका नहीं मिलेगा, उसकी चेहरा पीछे की तरफ कर दिया जाएगा। और इतने जोर से फरिश्ता ने जब उसको नामाए अमल देगा तो ऐसा जोर से आवाज करेगा कि फलाना की बेटा फलाना हलाक हो गया, तो मैदान महशर की सारे इंसान बराबर सुनेगा कि वो एक आदमी फलाना की बेटा फलाना जहन्नम में चला गया। अल्लाह हम सब को हिफाजत करे। तो दोस्तों, एक तो बात यह है कि इसीलिए हमें अल्लाह ने ईमान की मेहनत दिया, इसको दुनिया की हर चीज पर आगे रखना। इसीलिए भाई पहले हमारा ईमान और ईमान की तकाजा, ईमान ने जो चीज हमसे मांगता है इसको आगे, दुनिया जो मांगता है उसको पीछे। फिर दूसरा चीज दोस्तों, ये ईमान जो है अल्लाह ने ईमान के साथ सारी चीज को जोड़ दिया। दुनिया के ऐसा कोई चीज, दुनिया और आखिरत की सारे भलाई ईमान के साथ है। इसीलिए दोस्तों सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दुनिया में आया इन्होंने वही ईमान को लेकर आया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरु मा जीतु अना वन्नबियुना मिन क़ब्ली ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं और मेरे पहले जितने अंबिया अलैहिस्सलाम आया सारे के सारे जो अल्लाह की दरबार अल्लाह की तरफ से बेहतरीन चीज लाया वो ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह है। फरमाया कि और कोई चीज अल्लाह के खजाना में इससे कीमती होता तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने वही चीज देकर भेजता। फिर दोस्तों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जमा किया, सभा पर चढ़ गए और फिर बुलाया बनी हाशिम को, बनी अब्द मनाफ, बनी कुसाई, ये सारे बनी उमैया सबको जमा किया। क्यों बुलाया? तो फरमाया जीतु बिखैर दुनिया वल आखिरा, जीतुकुम बिखैर दुनिया वल आखिरा, तुम्हारे लिए मैंने दुनिया आखिरत की भलाई लेकर आया हूँ। लेकिन इनकी किस्मत में नहीं था ये अक्सर लोगों का, उतबा शैबा अबू जहल सब जमा हुए थे। तो फरमाया इसी की मोहताज हो हम। अरे वो ये तो बहुत अच्छा बात है, क्या चीज लाया हो जिसमें हमारा दुनिया और आखिरत की भलाई है? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुझसे ले लो तो तुम दुनिया में भी कामयाब आखिरत में भी कामयाब। सबसे पहला अबू लहब खुद पढ़े और कहा कि इसलिए हमें जमा किया, तब्बन लक साइर अल-यौम, तूने हमें अलिहाज़ जमा था, तुमने हमें इसलिए जमा किया, इस बात के लिए हमने कितने माबूदों की इबादत कर रहे हैं, उन्होंने हमारा मुश्किलात का हल नहीं कर सके और तू कहते कि एक ने सब कर देगा। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक बात लेकर आया, कलमा के साथ ईमान के साथ दुनिया आखिरत की सारे भलाई। इंसान दुनिया में जो चीज चाहता है वो मौजूद है ईमान में। दुनिया के इंसानों के पास सब इंसान के पास इज्जत महबूब है, सब इज्जत चाहता है, जिल्लती किसी के पास महबूब नहीं, चाहे मालदार हो या गरीब हो, यानी आला हसब नसब के हो या अदना हो, सबके पास इज्जत महबूब है, इज्जत मांगता है। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अगर इज्जत चाहो तो ईमान बनाओ। लिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अरे ईमान तो अल्लाह के लिए है और अल्लाह के रसूल के लिए है और ईमान वालों के लिए है।
अल्लाह की खजानत से आता है इज्जत, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरीका से दुस्त ईमान वालों के लिए इज्जत। इसीलिए हजरत सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कुन्ना ज़िल्लाल कौम व अअज़्ज़ना अल्लाहु बिल इस्लाम। अरे दुनिया में तो हम ऐसे कौम थे, कोई हमें पूछता नहीं, हम बिल्कुल लोगों की नजर में घटिया था, लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने हमें ईमान और इस्लाम देकर हमको इज्जत दिया। फरमाया जो इस ईमान को छोड़कर दूसरे किसी चीज के जरिए इज्जत मांगेगा अल्लाह उसको उसी में जलील करेगा। इसीलिए हमारा जिल्लती का आज जो दुनिया में हम मुसलमान देखते हैं कि हम तो जिल्लती में है, सबब ये है कि हमने दुनिया के असबाब से इज्जत मांगते हैं, दुनिया के असबाब से इज्जत नहीं होता। बड़े कार वाला साहिब है, जा रहे हैं, लोग सलाम कर रहे हैं, वो बेचारा समझते कि मुझे सलाम है, असल में उनकी गाड़ी का सलाम है। जब गाड़ी नहीं तो कोई नहीं पूछता। कुर्सी पे है एक शख्स, शानदार कुर्सी में बैठा हुआ, सब लोग सलाम करते हैं, लेकिन जब दोस्तों कुर्सी चला गया, जेल में चला गया तो कोई पूछता भी नहीं, नाम भी नहीं लेता। इसलिए दुनिया के असबाब से जो इज्जत हासिल किया जाता है ये इज्जत नहीं, असल इज्जत तो होता है ईमान वालों के लिए। इसीलिए ईमान वाला जहां भी जाए उसका इज्जत। इसलिए हजरत बिलाल ना रजी अल्लाह ताला अन्हु, ना उनका कोई हसब नसब था, ना उनके पास कोई माल, ना देखने में खूबसूरत और लंबे आदमी, उनका नाक बहुत मुठे और सिया आदमी था, लेकिन इज्जत अल्लाह ने कैसा दिया। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बैठा हुआ, खालिद बिन सईद जो मक्का मुकर्रमा के बड़े सरदार, ईसाई और बड़े बड़े सरदार हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दरबार में हाजिर हुआ मजलिस में। उन्होंने कहा कि तशरीफ रखे, लेकिन खबर आया कि बिलाल आया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपने जगह छोड़कर दरवाजा पर जाके इस्तकबाल किया और फरमाया जा सय्यदुना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल आ गया। दोस्तों क्या उनके पास कोई दुनिया की सनद था कि ये सैयद ज़दा है? इतना इज्जत कैसे मिला उनको? और दुनिया में भी आखिरत में भी, आखिरत में कितना बड़ा इज्जत कि जब आखिरत में हिसाब खत्म हो गया, अब जन्नत में वाला जन्नत में रवाना और जहन्नम वालों को जहन्नम की तरफ ले जा रहे फरिश्ता, तो सबसे पहले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूफी तो उठनी आएगा और इस पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार होंगे और इसकी लेजाम जो होते हैं ना, लगाम होते हैं, वो हजरत बिलाल के हाथ में होगा, खिंचता हुआ जन्नत में चले जाएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल तुम क्या अमल करते हो कि तेरे पैर की आवाज जन्नत में मैं मेरे सामने सुनता हूँ, तो आगे आगे मेरा चल रहा हो। खादिम आगे ही होता है। तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या इज्जत हो सकता है? ये दुनिया की किसी चीज से नहीं मिला, ईमान की बरकत से, ईमान पर इन्होंने कुर्बानी दिया तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने उनको इतना इज्जत दिया। दुनिया की हर इंसान चाहते हैं कि हमारा सर ऊपर में रहे, बड़ा ही मांगता है, यह इंसान की तबीयत में है, लेकिन दोस्तों ईमान के बगैर नहीं हो सकता, हासब से नहीं हो सकता कि मैं फलाना खानदान का हूं। तो फलाना खानदान का होता तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद को सबसे ज्यादा बड़ा खानदान यही है, इनकी नस्ल से अक्सर नबी आए हैं, जिनका पोता हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम है। कुछ नहीं मिला, खाजा अबू तालिब को नहीं मिला, इससे नहीं मिलता। बड़ाई और बुलंदी ईमान पर। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया अंतुमुल आलाउना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही ऊपर होकर रहोगी अगर तुम्हारे पास ईमान हो, ईमान कामिल हो, ईमान ऐसा हो जिस ईमान ने तुमको हराम से रोक दे, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा कर दे, तो तुम्हारा सर ऊपर होकर रहेगा, और न दुनिया की किसी चीज से तुम ऊपर नहीं आ सकते हो। दोस्तों इसी तरह दुनिया के इंसान के पास महबूब सबसे ज्यादा क्या है कि भाई अल्लाह की हमको अल्लाह नसरत करे, मदद करे। हर एक चाहता है कि हमको अल्लाह की नसरत और मदद, अल्लाह की ताईदत गैबिया हमको मिल जाए। दोस्तों इसके लिए भी अल्लाह ने ईमान का शर्त लगाया, कान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया कि मेरे जिम्मा में है कि मोमिनीन का नसरत करो। इसे मुस्लिमीन नाम के पर नहीं, ईमान वाले, कामिल ईमान वाले हो तो इनके लिए अल्लाह की नसरत है। सहाबाए किराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम, उनका यही हालत था। हजरत खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया
हम जो दुश्मन की मुकाबला करते हो ना ये तादाद के जरिए से नहीं दोस्तों, इसी तरह फरमाया कि हथियार से नहीं, हम तो इनसे लड़ते अल्लाह की नसरत और मदद से। हम कम हैं लेकिन अल्लाह की नसरत और मदद वही असल चीज है। इसीलिए सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम ने अपना जान माल को इस ईमान पर लगाया, ईमान की मेहनत पर लगाया, तो अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु की नसरत और मदद हो गया उनके साथ। इसीलिए वो थोड़ा लेकिन काम बहुत। इसी तरह दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, दुनिया के इंसान की तबीयत ही में है कि भाई सारे इंसान हमें मोहब्बत करे। इसके लिए दुनिया के इंसान माल खर्च करते हैं और सब इंसान मुझे सलाम करे। दोस्तों, मोहब्बत जो होता है वो ईमान और अमल की बुनियाद पर होता है। ईमान हो अमल हो तो मोहब्बत, और ना ये मोहब्बत नहीं होता। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जिनके पास ईमान हो अमल हो अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु उसको अपना दोस्त बना लेते। तो इसका तरतीब क्या होता है? बंदा अल्लाह की कुर्बत हासिल करता है ईमान और अमल के जरिया से। फिर जब अल्लाह उसको मोहब्बत करने लगते हैं तो हमलतुल अर्श, अल्लाह की अर्श उठाने वाले फरिश्ता को हुक्म फरमाते कि मैं फलाना को मोहब्बत करता हूं, मेरा बंदा को तुम भी मोहब्बत करो। तो फिर इन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को खबर देता है कि अल्लाह और हम अल्लाह के फलाने बंदे को मोहब्बत, तुम भी मोहब्बत करता हो, तुम भी करो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फिर पहले आसमान वालों को, फिर इन्होंने दूसरे आसमान वालों को कि अल्लाह के फलाना बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और हम सारे आसमान वाले उसको मोहब्बत करे, तुम भी करो। तो फिर चौथा आसमान वाले मोहब्बत करने लगते। फिर इन्होंने पांचवा है, छठा सातवां आसमान तक आ जाते हैं। फिर क्या होता है? फिर इन्होंने ये आवाज लगाता है, पहले आसमान वाले जो दिखाई दे रही है हमारे सर पर, उस आसमान वाले कहते हैं कि आए दुनिया वालों, फलाना कि बेटा फलाना अल्लाह की बंदे, अल्लाह और अर्श उठाने वाले और जिब्राइल और सारे जिब्राइल अलैहिस्सलाम और सारे आसमान वाले मोहब्बत करते हैं, तुम भी मोहब्बत करो। फयूज़अ लहुल कबूल, उसके लिए जमीन पर कबूलियत आ जाते हैं। अब इंसान क्या, ऐसे आदमी को किसी ने चाय पिलाया तो आपने सादतमंदी समझता है कि आज मौका मिल गया, फलाना को मैंने एक प्याला चाय पिलाया, अरे दूध पिलाया। ये तो इंसान के दिल में इनका मोहब्बत, हत्ता के दरिंदे के अंदर, और ऐसा ही दोस्तों मुहलिक जानवर वो भी उनको मोहब्बत करते हैं। इसीलिए आया है हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु सफर में जा रहे थे, कहीं जाके जंगल में दाखिल हुआ, रास्ता भूल गया। अब वो परेशान हो गया, जिधर जा रहे इधर रास्ता उनको नहीं मिल रहा है, जंगली जंगल। इतने में देखा कि शेर उनके सामने तैयार हो रहे हैं उनको खाने के लिए, तैयारी हो रहा है उसका। देखते ही वो घबराया नहीं, फौरन वो शेर के करीब पहुंचे और जाके फरमाया आया अबुल हारिस, क्या आया अबुल हारिस, शेर को कहा इन्होंने। अरब अबुल हारिस कहते हैं कि तुम मुझे खाना चाहते हैं, तुम मुझे नहीं पहचानते, मैं कौन हूं? मैं तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सफीना हूं, सहाबी हूं। इतना कहना शेर अब जमीन पर बैठ गया, शर्म के मारे से दो महीना बंद हो गया। तो उन्होंने वो इसके बाद वो यहाँ से भागा नहीं। इन्होंने शेर को कहा कि देख अबुल हारिस, मैंने रास्ता घूम कर लिया, मेरा साथी लोग कहाँ है और किस रास्ता से मैं जाके उनसे मिलो मुझे मालूम नहीं। फरमाया शेर खड़ा हुआ, खड़ा होकर इसने दुम हिलाना शुरू किया, गोया के उन्होंने इनको बता रहे कि मेरे पीछे आओ। अब शेर आगे चल रहा है और हजरत सफीना रजी अल्लाह अन्हा पीछे चल रहा है। चलते चलते जंगल गुजार के उनके साथी लोग जहाँ वहां तक पहुंचाया और एक चीख मार के वापस हो गया जंगल में। फरमाया कान्ना मवद्दानी, शेर ने गोया कि मुझे रख्सत किया कि तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा साथी मिल गया, मुझे छोड़ो मैं जाता हूँ। दोस्तों, अल्लाह ने जीता शेर जिसने इंसान का खाने के हिर्स में होता है वो उनके लिए रहबर बन गया। अल्लाह ने इसके दिल में भी मोहब्बत डाल दिया। इसीलिए अल्लाह वालों की मोहब्बत होता है
क्योंकि अल्लाह जल्ला शानू इनको मोहब्बत करते हैं। कितने जमाना हो गया सहाबा कराम, ना हमने देखा, ना हमारे बाप, ना दादा इन्होंने देखा, लेकिन इनकी मोहब्बत आज हमारे दिल में है। अपने भाई को गाली दिया तो फिर भी बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन किसी ने बिलाल को गाली दिया तो कोई ईमान वाला बर्दाश्त नहीं करे। हत्या के बेनमाजी भी सबसे पहले जान दे देगा, तो बिलाल को गाली दे, इतना हिम्मत, हम जिंदा हो। ये मोहब्बत अल्लाह की तरफ से आते हैं, दुनिया के पैसा से, दुनिया के किसी ओहदा से ये इज्जत और ये मोहब्बत नहीं हासिल होता। दोस्तों, इसीलिए अमन, आफियत, अल्लाह ने ईमान और अमल सालिहा के साथ इंसान की आमान और आफियत, आज ये इश्तराकी मसला है पूरे दुनिया में, चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब के लिए सबसे बड़ा दुनिया में अभी जो पैसा खर्च हो रहा है ये अमान के लिए, अमान के पीछे, चाहे मुसलमान मुल्क हो या गैर मुसलमान मुल्क हो। और इतने यानी हथियारों का जो इजाद हो रहा है ताकि अमान हासिल हो जाए। हर मुल्क वाला, गर्ब वाला, मशरिक वाले, मगरिब वाले, जुनूब शिमाल वाले, सारे दुनिया की मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सब ये अमान चाहते हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानुहु ने फरमाया, ना हथियार से, ना तादाद से, ना और किसी रास्ता से तुम क्या कर सकते हो, अमान हासिल कर सकते हो। अमान तो अल्लाह की तरफ से आता है। अल्लाह जिसको अमान दे हर हाल में उसका अमान है। अकेला भी है तो फिर भी अमान है, लोगों के दरमियान है तो वहां भी उसको अमान है। अल्लाह जल्ल शानु जिसको अमान देते, इसलिए वल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु व हुम मुहतदून। अल्लाह ने फरमाया, जिन्होंने ईमान लाया और ईमान के साथ कोई मिलावट नहीं, यानी शिरिक से ईमान को पाक किया, हर किस्म की शिरिक, यकीन खालिस अल्लाह की जात पर हो, तो अल्लाह की तरफ से उनको अमान है। रूम वाले, फारस वाले इनकी दुश्मनी में टना हुआ है और इनको कैसे खत्म किया जाए इसकी फिक्र में है, लेकिन इनको अल्लाह ने अमान दे दिया है। दोस्तों, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, उन्होंने जमात शाम में वहाँ ताउन शुरू हो गया, इसीलिए वो परेशान था। तो रोजाना इन्होंने जब चाश्त की हो जाता तो मदीना की मगरिबी जानिब उहुद की तरफ जाके वहाँ इंतजार करते थे कि कोई खबर आ रहे है शाम से, क्योंकि वहाँ हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु है, हजरत मुआज़ इब्न जबल, शुरहबील इब्न हसना, ये सारे बड़े उधरी था और अक्सर ही वहाँ फौत हो गए थे इस ताउन में। तो दोस्तों, उनके इंतजार करते थे, फिर वहाँ जब थकान आता तो आराम करते, फिर वहाँ से आके जोहर की नमाज पढ़ते। एक यहूदी ने देखा कि इनको तो शहीद करना बहुत आसान बात है, इसने एक दिन तलवार लेकर आया और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु वैसे ही दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं, उनकी सवारी उधर दूर है। जब वो करीब आया तो अचानक एक शेर कूद पड़ा उसकी तरफ और इतना जोर से आवाज किया, वो बेचारा बेहोश होकर जमीन में गिर गया। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की भी नींद चला गया, देखा कि एक आदमी यहाँ बेहोश होकर गिरा हुआ है, बस उस पर पानी छिटका मारा वगैरह। तो फिर उसकी जब अकल आया और उसने जब फिर उसके अंदर होश आया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने पूछा, क्या बात है? तो इसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, मैं तो ये बुरा नियत लेकर आया था कि आपकी सर को उतार दो बदन से, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक शेर ऐसा आया और जिसने ऐसा जोर से हमला किया कि करीब तक मुझे वो खा ले। अब शेर तो कह रही है, ये दुनिया की शेर नहीं था, ये अल्लाह की तरफ का शेर था। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, तो जिस आदमी को, जिस इंसान को अल्लाह ने अमान दे दे तो दुनिया वाला क्या कर सकता है। अब ये बात होता है कि हजरत उमर तो फिर मदीना में शहीद हुआ कैसा। दोस्तों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह से मांग कर लिया, सवाल करके लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुआ मांगते थे अल्लाह से, आय अल्लाह मैंने अर्जुक़नी शहादतन फी सबीलिक व फी बलद हबीबिक, आय अल्लाह मुझे तेरे रास्ते में शहादत नसीब फरमा, और लेकिन या आय अल्लाह मेरा मौत तेरे हबीब के शहर में हो। उम्मुल मोमिनीन हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी साहिबजादी फरमाई कि अब्बा जान, ये अजीब दुआ है आपका और अजीब बात है, आप शहादत भी मांगते हो और मदीना में मौत भी चाहते हो, ये दो कैसे जमा हो? या तो सारे मुसलमान हैं, आप अगर शहादत चाहते हैं तो ईरान में चले जाए या तो शाम में चले जाए, वहां जाके हम
وہاں شہادت حاصل ہو سکتا ہے. تو فرمایا بیٹی سنو، جس اللہ نے عمر جیسا آدمی کو ہدایت دیا، ایمان عطا فرمائی، اور جس نے مجھے ہجرت کی دولت سے مالامال فرمایا، اس اللہ کے پاس یہ مشکل نہیں کہ میرا موت مدینہ بھی ہو جائے اور شہادت بھی مل جائے. دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاحب مستجاب الدعوت تھا، دعا قبول ہوئی، اسی لیے ان کا شہادت مدینہ میں ہوا، ورنہ امان اللہ کی طرف سے تھا. دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، جو دنیا میں انسان چاہتے کہ ہمیں بیوی بچہ کو لے کر آرام سے رہو، ساتھ مدد مندی کے ساتھ میں رہو، دنیا میں آرام اور راحت کے ساتھ رہو، تو اس میں بھی اللہ نے ایمان عمل کا شرط لگایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. دوستو، جس نے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نیک عمل کو اچھا بنایا، اچھا سے اچھا بنایا، ایمان کے ساتھ، یعنی یہ ایمان کے ساتھ یہ عمل کو اس نے اچھا بنایا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں پاکیزہ زندگی، آخرت میں تو جنت ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے یہ پاکیزہ زندگی آ جائے تو دوستو، کھائے بھی، مل گیا تو بھی خوش، نہ ملا تو بھی خوش. بیوی یہ نہیں کہے گا کہ کیسے گھر میں آیا ہو کہ فقر و فقر ہے، آپ کو خبر نہیں، آپ کو اتنا عقل نہیں تھا کہ بھائی کھانے پینے کی بھی انتظام کرنا پڑے، آپ نے شادی کیا. یہ سب بات نہیں. ایک دن نہیں ملا، 2 دن نہیں ملا، یہ نہیں، بلکہ چاہے گا کہ بھائی اللہ تو میرے ہے، میرا رب ہے، میرا شوہر اللہ کے دین کے لیے جا کے شہید ہو جائے تو اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں کرے. گھر میں اللہ نے پاکیزہ زندگی، اسی لیے عمرو بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی محترمہ، اللہ گھر میں آیا عمرو بن جمح رضی اللہ عنہ، فرمایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے اجازت دیا تھا کہ میں اللہ کے راستہ میں نکل جاؤں احد میں. تو بیوی نے اور ان کو ترغیب دے رہی ہے. بیوی نے کہی کہ ہاں، ہم نے دیکھا کہ آپ کو معذور پیر لے کر واپس آ رہے ہو. ناراض ہو گئے، نکلا گھر سے، دعا مانگے، اللہم لا تردنی الی اہلی، اللہ مجھے میرے حال کے پاس واپس لوٹا مت. گیا اللہ کے راستہ میں، ایک لڑکا کے ساتھ وہ شہید ہو گئے. بی بی نے بھی تیار کر کے دیا، جا کے شہید ہو جاؤ اللہ کے راستہ میں، گھبراہٹ نہیں. تو بھائی اور بزرگ دوستو، شہید ہو گیا. بی بی کا خبر ملی، بی بی گیا اٹھنی لے کر تاکہ مدینہ میں لے آئے، لاش لا کے یہاں دفن کرے. لیکن جب اٹھ پر لاٹ کے ان کو لانا چاہا، لیکن اٹھ آ نہیں رہا، احد کی طرف کھڑا رہتا ہے. خبر گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ انہوں نے گھر سے نکلنے کے وقت کوئی بات کہا؟ بولے ہاں، یہ دعا مانگی. بولے اللہ کی طرف سے اٹھنے کا حکم ہے، وہ مدینہ کی طرف نہیں جائے گا، ان کو یہی دفن کرنا، ان کا قبر احدی میں ہے. بھائی اور بزرگ اور دوستوں، پاکیزہ زندگی حاصل ہونا ہے ہمیں کہ بھائی کم زیادہ جو بھی ہو، ہر حال میں ہم گھر میں آرام اور راحت سے رہیں. تو دنیا کی کوئی چیز سے نہیں بنے گا. گھر میں دنیا کی ساری چیز آپ بھی لائیں تو پاکیزہ زندگی نہیں آ سکتا، آرام راحت نہیں مل سکتا. تو دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان ہو، اعمال صالحہ ہو. تو بچہ کو عید کے دن بھی چیز ملا تو خوش، والد صاحب اللہ کے راستہ میں تو وہاں بھی خوش ہوگا. دوسروں نے نیا کپڑا پہنا تو وہ کہے گا کہ ہاں تم نے نئے کپڑے پہن لیا، آج تمہارا عید کال ختم ہو جائے گا، لیکن ہمارا عید انشاءاللہ جنت میں ہوگا. ہمارا والد صاحب اللہ کے راستہ میں ہے. پاکیزہ زندگی کا نتیجہ یہ بنتا ہے، نہ بچہ ناراض، نہ بچی ناراض، سب خوش. اللہ نے جس حال پر رکھا میں پاکیزہ زندگی حاصل ہونا، یہ اللہ کی بہت بڑا نعمت ہے. عافیت کا ملنا دنیا سے میں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو. بھائی اور بزرگ اور دوستو، ایسا ہی ہم چاہیں کہ ہمارے زندگی کی سارے حاجت پورا ہو جائے. حاجت کا پورا ہونا چیزوں کو جمع کرنے سے نہیں ہوتا. زیادہ چیز بھی مل جائے، پیسہ زیادہ ہو جائے تو اس سے حاجت پورا اس کے ساتھ ہونا، ان کے ساتھ تعلق نہیں. اللہ اگر چاہے تو تھوڑے سے بھی کام بنا دیتا ہے. اسی لیے دوستو، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. اللہ جل شانہ من والوں نے فرمایا کہ اگر بستی والے، شہر والے ایمان بنا لے اور ایمان کے ساتھ تقوی حاصل کر لے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے ایمان کو بچا لے، تو دوسرے ان کے لیے آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ کھول دیتا ہے. اسی لیے دوستو، حضرت سیدنا
अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह की मेहमान कौन ले जाएगा मेहमानी के लिए। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे शख्सियत कि नेक काम में कभी पीछे नहीं होता। तो उनको मालूम है घर में खाने पीने का इंतजाम बहुत ही थोड़ा है, ये मदीना की मसला है। तो फिर भी उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, अल्लाह की मेहमान को ले जाओ, मेहमानी करो। तो इन्होंने ले गया, जाके घर में साहिबजादा को फरमाया कि जाओ इनको खाना खिलाओ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आ गया। इनका आदत शरीफा ही था कि पहले रात में उन्होंने वो नमाज पढ़ते, इबादत करते, आखिरी रात में जाके आराम करते। कभी कभी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे हैं तो बुला के यहाँ रोटी खिला के देता। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आखिर रात में घर जाते, वहां जाने के बाद मिला तो खाया और नहीं सही आराम फरमाते। तो उन्होंने आके अपने आदत की एतबार से नमाज शुरू कर दिया। तो उनकी साहिबजादा ने खाना पेश किया अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला ने मेहमानों को। मेहमान लोगों ने कहा कि घर वाला कहा है, बोले वो तो गया मस्जिद में, ताखिर होगा, अब हजरत खाना खा लो। उन्होंने कहा कि नहीं, मेहमान मेजबान एक साथ खाना है, हम उनके इंतजार करेंगे। तो इन्होंने समझाया बहुत, लेकिन ये नहीं समझे, कहा कि नहीं, हम उनके अलावा खाना नहीं खाएंगे। तो ये इंतजार में था। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आया, आगे देखा ये लोग इंतजार में, भाई खाना खाया तुमने? बोले नहीं खाना खाया। तो उन्होंने समझा कि साहिबजादा ने नहीं दिया उनको खाना पेश नहीं किया, गर्म हो गया। फरमाया गुंसर, जैसे कि हम बलद, इसे कहते अहमक, ऐसा लफ्ज उन्होंने कहा। तो हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ने फरमाया अबू बकर बहुत नरम आदमी है, लेकिन जब गर्म हो जाता है तो बहुत गर्म हो जाता है। मुझे समझ में आएगा, अभी तो मुझे पिटाई करेगा। भाग गया, कहा कि मैंने पत्थर के पीछे जाके अपने आप को छुपा लिया। तो इन्होंने कसम दिया, अरे अल्लाह की कसम, मेरा आवाज सुनता तो जल्दी निकला। तो अब वो निकल आया, इधर से बात चली तो मालूम हुआ कि मेहमान को खाना इन्होंने पेश किया, लेकिन मेहमान ने नहीं खाया। तो उन्होंने फरमाया कि क्यों तुमने नहीं खाना खाया? कि आपने इसलिए ताखिर किया, खाना नहीं खाया कि आपके साथ खाना खाओ। तो उनकी सर पे गुस्सा था। इन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, आज रात में एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा। मेहमान भी हुई, मेहमानों ने भी हुई, फौरन उन्होंने भी कहा कि हमने अल्लाह की कसम खाई, आपके अलावा एक लुकमा भी नहीं पकड़ेंगे। अब हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला को मालूम हो गया कि यह तो शैतान आया, अल्लाह ने मुझे मौका दिया कि सवाब हासिल करे, आप इससे मुझे महरूम करना चाहते हैं कि अल्लाह की मेहमान, अल्लाह के रसूल की मेहमान भूखा रहे। तो फरमाया कि भाई खाना लाओ, और मेहमान को फरमाया कि आ जाओ खाना खा लो, तुम्हारा कसम ठीक रहे, मैं मेरे कसम का कफारा अदा कर दूं। खाना खाया, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाना खाया, मेहमानों ने खाया, फिर साहिबजादा ने खाना खाया। फिर दोस्तों अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु को अंदाज हुआ कि खाना तो थोड़ा ही था, कुछ बाकी नहीं रहा बीबी के लिए। तो घर गया, मोहब्बत की बात की, या उख्त बनी फिरास, बनी फिरास की बहन, आपकी खाना का क्या हाल है? बीवी ने भी वैसे ही जवाब दिया, दीन है, मोहब्बत है। वरना तो उल्टा हो जाता बात कि आपने खाने के हाल पूछते, आपको मालूम नहीं कितना खाना था और कितना आदमी लाया आपने, ये बात नहीं कहा। फरमाया कुर्रतु आईनी, कुर्रतु आईनी, मेरे आंख की ठंडक। कैसा लफ्ज, अज़यद मिन अल-अव्वल, मेरे खाना का ये हाल है, जितना मैंने पकाया इससे अभी ज्यादा है। जो भी खाना मैंने हंडी से निकलता जा रहा हूँ, इतना ही नीचे से बढ़ते जा रहे हैं। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, फरमाया कि आप खा लो। खाना खाया, ढक के रख दिया। दूसरा दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया। तो भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह अल्लाह की तरफ से आपके हाल आयाल के लिए बरकत है। बहुत बड़े मजबूत था, सब ने थोड़े छोटे हांडी से सब ने खाना खाया, सबका काफी हुआ। तो दोस्तों, बरकत भी ईमान के साथ है। जब ईमान इंसान के बन जाते हैं तो इनकी थोड़ी चीज से काम सब हो जाता है। और जब बरकत नहीं तो मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा बीवी भी कमा रहे, लड़की भी, लड़का भी, फिर भी काम नहीं हो रहा है। महीना पूरा हो गया, फिर भी कर्ज लेना पड़ते हैं। क्यों? अल्लाह ने बरकत छीन लिया। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, इसी तरतीब से अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने आखिरत जो है दोस्तों, वो भी ईमान के साथ ही जुड़ दिया। दुनिया की जितना चीज है
ऐसा ही तंगी से निकलना, ये भी ईमान के साथ रिजिक तलाश करना, तो वो भी ईमान के साथ अल्लाह ने जुड़ा। ईमान बन गया तो अल्लाह की तरफ से रिजिक मिलेगा, पाकीज़ा रिजिक। दोस्तों ईमान बनेगा तो हर तंगी से अल्लाह अपने कुदरत से निकालेगा। दोस्तों इसी तरह जन्नत, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। दोस्तों अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि जिसने अपने ईमान को मजबूत करेगा, ईमान बनाए और ईमान को हिफाजत करके लेकर आखिरत में आ जाए, अल्लाह ने उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस बना देगा। तो दोस्तों इसलिए सारे अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आया तो वो ईमान लेकर आया और ईमान की मेहनत लेकर आया। आखिर में दोस्तों सैयदुल मुरसलीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने भी वो ईमान ले आया और ईमान की मेहनत को ले आया। तो दोस्तों अभी तक तो हमने जो देखा कि अल्लाह जल्ल शअनुहु ने ईमान के साथ ये सारी चीज को जोड़ के रखा, और हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया और आखिरत की भलाई इस ईमान में है। अब ये ईमान कैसे आया और ईमान क्या है? दोस्तों इसीलिए ईमान का तो इब्तिदा ला इलाहा इल्लल्लाह से शुरू होता है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है, मक्तूबुन अलल अर्श ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला युअज़्ज़िबु मन क़ालहा। अल्लाह के आरश में लिखा हुआ है हदीस कुदसी के ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ने फरमाया जो इस कलमा को ले लेगा, इकरार कर लेगा, उनको मैं अजाब नहीं दूंगा। तो दोस्तों ये जो ईमान है, तो ईमान में सबसे पहले ला को मुकद्दम कर दिया, आगे कर दिया। इससे दुनिया की सारे चीज का इनकार है कि सारी चीज में कोई ताकत नहीं है। दुनिया की चीज उन्हें कुछ नफा और नुकसान नहीं कर सकता। दोस्तों सारी चीज जो होता है सब कुछ अल्लाह से होता है, मखलूक से नहीं होता। कितना बड़ा प्यारी बात है कि जो कुछ होता है सब कुछ अल्लाह के इरादा से होता है, मखलूक अपने इख्तियार से कुछ नहीं कर सकता। सारी दुनिया की जितने चीजें हैं सब चीज अपने वजूद में अल्लाह की मोहताज है। दोस्तों नफा और नुकसान में भी अल्लाह की मोहताज है। लेकिन इंसान के जो देखना है नजर है वो दो लाइन से चीजों को देखता है। एक क्या है कि होने की नजर से देखता है, एक चीज को देखता है कि इसमें ना होने की नजर से। मिसाल के तौर पर दोस्तों हम सारे यहाँ बैठे हुए हैं, इतने में एक साहब आया और इन्होंने कहा कि भाई यह तो बहुत बड़े एक शेर आ गया। शेर आ गया सुनते ही हमारे अंदर एक खौफ तारी हो जाएगा और सारे के सारे हम कूद पड़ेंगे, भाई अरे पहले हथियार तो लाओ, शेर को खत्म करो वरना किसके जान जाएगा। सारे के सारे हम परेशान हो जाएंगे शेर की लफ्ज सुनते ही कि शेर यहाँ आ गया मैदान में। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बाद दूसरा शख्स आया, दूसरा साहब आके कहा कि भाई परेशान मत हो, शेर तो आया लेकिन ये शेर मुर्दा है। अब बताइए ये लफ्ज सुनते ही हालत की तब्दीली हो गया या नहीं? सबके दिल से इसका खौफ निकल गया, सब भागा कि भाई शेर कैसा है देखना चाहिए। अब बच्चा लोग जो है वो जाके कोई उसकी मुंह खोल के दांत कैसा है देखता है, और दो चार बच्चे जाके उसकी दुम कितना लंबा है उसको नापता है, किसी ने उसकी मूंछ पकड़ के खींचता है। क्यों? तो पहले को हमने देखता है होने की नजर से देखा कि इसने जान खा लेगा, जान निकालेगा, और दूसरे से हम क्या देखता है कि भाई इससे कुछ नहीं, ये मोरा है। दुनिया की दोस्तों सारे ताकतें अल्लाह के सामने, सारे ताकत दुनिया की सारी चीज सब ये मुर्दा शेर की तरह। अल्लाह जो चाहे चीजों से वही होगा, अल्लाह जो नहीं चाहता है वो कभी नहीं होगा। वो यकीन जो हमारे दिल में बनेगा तो फिर ये सारी चीज जो अल्लाह ने वादा किया है वो मिलेगा। अल्लाह ने इस चीज को समझाने के लिए कि सारा चीज अल्लाह के इरादा से है, बनने में अल्लाह की मोहताज, इस्तेमाल में अल्लाह की मोहताज, ये समझाने के लिए अल्लाह ने अल्लाह के रसूल के साथ किताब भेजा। ये कुरानुल करीम में 6666 आयत, अभी कंप्यूटर वालों कहते हैं और कुछ कम, जो भी हो, इनमें सिर्फ 500 आयत है जो शरीयत है, करना और ना करना 500 आयत। बाकी पूरा कुरान जो है इसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने अपने कुदरत की बातें की, ईमानियत है। अल्लाह ने यह बात समझाया हमें कि देखो जिन्होंने अल्लाह को माना
अल्लाह की जात पर यकीन बनाया, उनकी जिंदगी कैसा बने, और जिन्होंने अल्लाह को नहीं माना और ईमान नहीं बनाया, इनकी जिंदगी को अल्लाह ने कैसे उजाड़ की। अल्लाह ने दिखाया कि चीज जो है ये दुनिया की सारे चीज का ये हाल है। ये ईमान समझाया कि इन्हों का कोई अपना शख्सी अल्लाह ने ताकत उनको नहीं दिया, बनना अल्लाह के इरादा से, इस्तेमाल अल्लाह के इरादा से। आग जो है वो अल्लाह के इरादा से बने हैं, जलाने में अल्लाह की इरादा का मोहताज है। पानी अल्लाह ने बनाया, डूबने में अल्लाह की इरादा की मोहताज है। लोहे को अल्लाह ने बनाया और ये काटने में अल्लाह की मोहताज है। इसीलिए दोस्तों अल्लाह जल्ल शानुहु ने बारहा कुरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वाकया को सुनाया। क्यों? ताकि हमारे यकीन बन जाए कि इतना बड़ा आग नमरूद ने जमा किया, लकड़ी जमा किया और पहाड़ को उजाड़ करके लकड़ी लाया और फिर यहाँ आग लगाया। आग इतना बड़ा हुआ कि इसके करीब भी नहीं जा सकते। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तरतीब बना के चरखा से उसको आग में ढाला। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में अभी घिरने वाले हैं, इस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। लेकिन देखिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा कि आप अगर हमें इजाजत में रहमत फरमाइए तो हम अब आग को बुझा देते हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये भी मेरे लिए एक इब्तिला है कि इस मुसीबत के वक्त मैं अल्लाह की तरफ जाता हूँ या मखलूक की तरफ मेरा नजर जा रहे हैं। तो इन्होंने फरमाया इम्मा मिनकुम फला व इम्मा मिन अल्लाह बाला, आपकी तरफ से हो, आप आए हो हमारे नुसरत के लिए तो मुझे आपका जरूरत नहीं है, अगर अल्लाह ने भेजा है तो मुझे कोई इनकार नहीं है। तो फरमाया कि नहीं, हम आए हैं, अगर इजाजत हो तो हम आग को बुझा दे। तो फरमाया कि नहीं। तो सवाल करो, बोले नहीं, हाली अगलमिल काली, हमारा क्या जरूरत है, मुझे अल्लाह को बताने से पहले अल्लाह ज्यादा जानता है, मुझसे ज्यादा जानता है कि मुझे अभी क्या जरूरत है। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में घिरा, एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता नहीं, 40 दिन चिल्ला हो गया। दूसरे एक कौल में है कि 50 दिन आग में रहा, आराम किया, खाना खाया जन्नत के, पिया, फिर सलामती के साथ आग से निकल आए, एक बाल भी नहीं जल सके। भाई बुजुर्ग दोस्तों, यही खत्म नहीं। एक रायत में है कि जिस दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में घिरा, अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो फरमाया आग का कि तुम ठंडा हो जाओ, तो पूरे दुनिया की मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक उस दिन किसी ने आग से खाना नहीं बना सके। आग, पूरे दुनिया की आग बेकार था कि आग तो था लेकिन रोटी नहीं पका सके। दोस्तों अल्लाह ने दिखाया कि जलाना जो है ये आग का जाती ताकत नहीं, अल्लाह की इरादा की मोहताज है। अल्लाह ने इसे नहीं छोड़ दिया आजाद कि जिसको चाहे जला दो और जिसको चाहे छोड़ दो। आग भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया इसीलिए सुनाया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब आया दोस्तों समंदर में, सामने समंदर पीछे, बहरुल अहमर सामने, पीछे फिराओ, अब किस तरफ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल्ला, ना समंदर हमें डुबा सकते हैं, ना उधर क्या कर सकते हैं, फिरौन हमें हलाक कर सकते हैं। अल्लाह ने उनको अकल के ऊपर हुक्म दिया, फज़रिब बिअसाकल हजर। दुनिया वाला क्या कहते हैं, दुनिया के अकल वाले सारे, कि आपकी डंडा फिरौन के सर पर मारो, लेकिन अल्लाह ने फरमाया नहीं, इसमें नुकसान हो जाएगा बनी इसराइल का, मारो समंदर पर। समंदर पर 12 डंडा, 12 रास्ता हुआ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सही सलामती से निकल गया। दोस्तों अल्लाह ने यह बात बताया, हमें ईमान सिखाया कि देखो पानी का डुबाने की ताकत होता तो मूसा अलैहिस्सलाम को डुबा देता, लेकिन वो पहाड़ की तरह थाम गया, ठहर गया और मूसा अलैहिस्सलाम अपने पूरे कौम को लेकर निकल गया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने पानी में उनको हिफाजत किया। यह जाहिर हुआ कि पानी में डुबाने का ताकत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों इसी तरह अल्लाह अगर किसी को डुबाना चाहे, किसी को हलाक करना चाहे तो पानी का जरूरत नहीं। कारून को जो अल्लाह ने डुबाया है वो क्या पानी में डुबोया नहीं, वो तो जमीन का दशा दिया। अल्लाह कादिर है हर चीज पर, ला इलाहा इल्लल्लाह ने यही मांगते हैं हमसे। दोस्तों हम जानते हैं कि लोहे काटते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने साहिबजादा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जो ले आया, आप बेटा को ज़बह करना, अभी अंदाजा लगाइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में बच्चा मिला,
फिर बच्चा बिल्कुल छोटा नहीं कि माँ की गोद में ही है अभी 2-4 दिन, बल्कि फलम्मा बलगा माहु सअय, इतने उम्र में पहुंच गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम साहिबजादा इस्माइल अलैहिस्सलाम कि आप माफ की साथ दे सकते हैं, बाजार से गठरी लेकर घर आ सकते हैं। इस उम्र में हुक्म हुआ कि बेटा का जबा करो। दोस्तों जबा करने के लिए ले गया। आप ही बताइए कि छुरी को कितना तेज किया। इतने तेज छुरी को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चलाया, लेकिन छुरी ने काटा नहीं। गुस्सा हो गया, फेंक दिया छुरी को। काटता नहीं क्यों? छुरी को तो जबान नहीं, लेकिन इशारा से ही मालूम होता है कि हाँ इब्राहिम, गुस्सा होने का क्या वजह है? क्यों हमारे ऊपर गुस्सा होते हो? लकामरुन वली अमर, आपको भी हुक्म मिला, मुझे हुक्म मिला। आपको हुक्म मिला काटो, मुझे हुक्म मिला मत काटो। आपका आप मान रहे हो, मैं मान रहा हूं। भाई बुजुर्गों दोस्तों, दिखा दिया कि ये सारे दुनिया की जितनी चीज है, ये सारे चीज अल्लाह के सामने मुर्दा शेर की तरह, मुर्दा सांप की तरह। अल्लाह चाहे तो होगा, अल्लाह न चाहे तो न होगा। दोस्तों इसी चीज को दुनिया में हमें हासिल करना, इसीलिए ये चीज हमारे अंदर आ जाए कि हमारा सारे मसाइल का हल अल्लाह के हाथ में है। तो दोस्तों अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देना आसान है। इसीलिए दाई में सबसे बड़ा सिफत जो है उस यकीन का सिफत हो। दोस्तों इसी तरह दुकान जो है, जिससे हम हमारा हाजत को देख रहा है कि पूरा हो रहा है, दुकान से जब तक चाहे अल्लाह हमारा हाजत पूरा होगा, और अगर अल्लाह की इरादा दूसरा हो तो इस दुकान में हमारा सारा खा के जाएगा। दोस्तों जमीन से हाजत पूरा होना है, देख रहा हो, लेकिन दोस्तों अल्लाह चाहे दूसरा, अल्लाह का इरादा हुआ तो वो जमीन ने हमारा सारा खत्म कर देगा। सारा चीज जो घर में जमीन पर लगाया, लेकिन जमीन से खुश नहीं हुआ। दोस्तों ऐसे ही नौकरी से देखते हैं हमारा काम बन रहा है, अल्लाह चाहे तो बनेगा, वरना ये हमारे जान का वबाल होगा। अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने ये चीज को हम सही करके इस दुनिया से लेकर जाने के लिए भेजा कि देखो तुम दुनिया में, मैं तुमको इम्तिहान के लिए भेजा। ये इम्तिहान की तैयारी है कि तुम दुनिया में जाकर जो वादा तुमने मेरे साथ किया, इस पर तुम पक्का हो या नहीं हो। ये ईमान का हकीकत है। हम सब ने वहाँ अल्लाह के सामने जब अल्लाह ने बना के सवाल किया था, अलस्तु बि रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हो? तो हमने सब ने वहाँ इकरार किया, कालू बला, हाँ अभी हमारा रब है। अब दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने ये चीज जो हमारे सामने पेश किया है, ताकि हमारा थोड़ा सा इम्तिहान हो जाए, कौन उस वादे पर पक्का है और कौन यहाँ से हट जाते हैं। अब इसका रोजाना इम्तिहान होता है। अजान हो गया, एक साहब वो दुकान में बैठा हुआ है, दुकानी पे है और वो दुकान में ही लगा हुआ है, इधर नमाज चला गया। इसका मतलब ये हुआ है कि ये दुकानी हमारा हाजत पूरा करने वाले हैं। और जिसके दिल में है कि ये दुकान नहीं, ये नौकरी नहीं, ये खेती बाड़ी नहीं, हमारा मसला तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो मेरा हाजत पूरा होगा और न चाहे तो ना होगा। तो इनके लिए दुकान छोड़ के भागना तकलीफ की बात नहीं। इसीलिए हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि एक दिन अजान हो गया और वो बाजार में है, आ रहे हैं मस्जिद की तरफ से। तो फरमाया कि दाएं बाएं सारे तरफ हमने देखा कि एक मुसलमान भी बाजार में नहीं है। तो फरमाया इन्हीं की शान में अल्लाह ने फरमाया, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, ऐसा अल्लाह के बंदे हैं जिनको ना तिजारत ना और कोई काम कोई धंधा उनको अल्लाह की जिक्र से यानी नमाज से तिलावत से उनको रुक सकता है। आज दोस्तों कितने हमारी मेहनत का जरूरत है कि कैसे हम हमारा 4 महीना नहीं भाई दोस्तों और बुजुर्गों, एक तो हमारा ये हमारा जरूरत है ताकि हम मेहनत करके पहले सबसे पहला हमारा ईमान बन जाए और फिर भाई दोस्तों जिम्मेदारी हमारा है एक वो क्या कि सारे उम्मत इस नमाज ईमान बन जाए, अल्लाह के हुक्म पर खड़ा हो जाए। दोस्तों जब मेहनत करके हमने ईमान बना लेंगे तो ईमान का तकाजा ही है दिल में मोहब्बत होना, दिल में मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगा। जितना हम अल्लाह की बात को भूलेंगे और इस पर हम मेहनत करेंगे, हमारा जान और माल लगे। सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्होंने क्या किया कि सहाबाए कराम के पास जो कीमती था और कम कीमत वाले थे, गालिया और नफीस, सब अल्लाह के दीन पर ईमान की मेहनत पर लगा दिया। तो अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने
उनकी दुनिया की मसाला भी हल किया और आखिरत में बड़े बड़े दर्जात का अल्लाह ने वादा किया। तो दोस्तों हजरत साहबा करम के ईमान बन गया था, इसीलिए दोस्तों दुनिया की किसी चीज ने अल्लाह के हुक्म को पूरा करने में रुक नहीं सके। सब अल्लाह के हुक्म को उनको मिला तो वो फौरन पूरा करते थे। अब हमारा मेहनत है इस दावत तबलीग के जरिया से कि हमारे ईमान भी वही दर्जा तक पहुंच जाए ताकि हम हर हाल में अल्लाह के हुक्म को मान सके। तो दोस्तों अल्लाह ने ये बात जाहिर कर दिया कि देखो ये दुकान ये सारे चीज इससे तुम्हारा काम नहीं बन रहे हैं, आम बनाते हैं। तुम फिक्र करो कि तुम एक साथ में दुकान वाले दो हो, तुमको तो अल्लाह ने बहुत दिया और ये बेचारा फकीर हो गया, खर्च पर कर्जा लेते लेते वो चूर चूर हो गया। ये किसने किया? अब तुम्हारा यकीन इस पर बाकी है कि तुमने जो वादा किया कि अभी हमारा मसाइल का हल करने वाला है, आप हमारा रब, इस बात पर तुम कायम हो या नहीं? ये दुनिया में हर रोज अजान हो रहा है तो कौन इस बात पर पक्का है और कौन इससे हट गया, इसका इम्तिहान हो रहा है। फिर जब कब्र में जाएगी तो फौरन उसका सवाल होगा। इसीलिए ये दुनिया में जो अल्लाह जल्ल शानहु मनवालहु ने हयात दिया और मौत दिया, ये दो चीज। क्यों हयात दिया अल्लाह ने कि तुम अमल बनाओ, और मौत दिया इसका हिसाब के लिए। मौत के बाद इन सारे चीजों का अमलों का हिसाब होगा। खबर में जाए तो पहले ईमान का हिसाब होगा कि तुम्हारा रब कौन था। तो दुनिया में जो दोस्तों हमारा जान माल का कुर्बानी नहीं हुआ तो हम नहीं बता सकते कि अल्लाह अभी हमारा रब था। जिन्होंने असबाब के पीछे घुमा और असबाब पर अल्लाह के हुक्म को कुर्बान कर दिया, इसने ये नहीं कह सकता कि आय अल्लाह अब मेरा रब अभी थे, अल्लाह मेरा रब था, ये नहीं कह सकता। भाई बुजुर्ग और दोस्तों, जिसने अपने असबाब को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान किया यही कह सकता है कि अल्लाह मेरा रब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र के मंजर और कब्र के जो सवाल और जवाब ये बहुत बड़ा सख्त है और बहुत बड़ा यानी मुसीबत की मंजर है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह उस वक्त अक्ल बाकी रहेगा? बोले हाँ बिल्कुल रहेगा। होश बाकी रहेगा? हाँ। बोले तो इंशाअल्लाह। सवाल करे तो उसका एक हो। फरमाया कि उमर देखो तुम्हारा तैयारी ऐसा हो गया कि उमर जब फरिश्ता तुम्हें पूछेगा कि मन रब्बुक, तो तुम कहोगे कि रब्बी अल्लाह मन रब्बुकुमा, मेरा रब तो अल्लाह है, तुम्हारा रब कौन है? तो भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, इन्होंने मेहनत करते करते इन्होंने ये हुआ क्योंकि इनके सारे असबाब अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर दिया। तो इसीलिए दोस्तों ईमान वाला पहुंचते पहुंचते ये हो जाता है कि अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सब चीज पर। अल्लाह ने फरमाया अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ये सबसे ज्यादा ईमान वाले अल्लाह को मोहब्बत करने वाले हैं। तो दोस्तों मोहब्बत का तकाजा, ईमान का तकाजा यही है कि वो उसका माने, जिसको मोहब्बत करे उसको माने। इसीलिए दोस्तों अल्लाह जल्ल शानहु मनवाली की जो तरफ से जो हुक्म आया है इसी की नाम इबादत है। अल्लाह की तरफ से हमारे लिए इल्म आया है ताकि अल्लाह के हुक्म को अल्लाह जैसा चाहे वैसा हम पूरा करें। इसीलिए दोस्तों अल्लाह ने नमाज दिया। क्यों कि नमाज पढ़ के हम अल्लाह से ले, और नमाज जब हमारा मेहनत करके नमाज बन जाएगा, इसीलिए जो दीन ईमान की मेहनत करने वाले इन पर दूसरा जिम्मेदारी अपने नमाज को बनाए। नमाज जब बन जाता है तो उसका जिंदगी नाफरमानी से पाक हो जाता है। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर। इसे अल्लाह ने जो रोजा दिया है, हमारे सामने रोजा आ रहे हैं भाई, दूसरा रोजा दिया है हमारे अंदर तकवा बनाने के लिए। अल्लाह ने फरमाया कि तुम पर मैंने ऐसा रोजा फर्ज किया जैसे कि तुम्हारे पहले वालों पर फर्ज किया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 40 रोजा था और ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत पर 50। हमको अल्लाह ने कितना दिया? 1 महीना, 29 या 30। लेकिन अल्लाह का तरफ से ये वादा आया है तो तुम अगर रमजान के हक को अदा कर लिया, हिफाजत कर लिया, तो तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाएगा। ज़कात दी अल्लाह ने। दोस्तों ज़कात से गरीब मिस्किन की मोहब्बत आ जाएगा। अल्लाह जल्ल शानहु मनवालों ने हज दिया। दोस्तों नमाज और हज ऐसा दो इबादत है जिसमें अल्लाह की बंदगी जाहिर होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज आ जाएगा जब ईमान बनेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों अल्लाह जल्ल शानहु मनवालों ने एक तो हमारे ऊपर 2 जिम्मेदारी आया है। एक तो अपने जात के हिसाब से हम क्या करें,
हम अल्लाह की बंदा बने, क्योंकि अल्लाह ने हमको इस दुनिया में जो भेजा है अल्लाह की बंदगी के लिए, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, ताकि हमारे अंदर बंदगी की सिफत आ जाए। तो नमाज सही हो गया तो बंदगी की सिफत आ गई, बाकी आहिस्ता आहिस्ता आएगा, क्योंकि क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब किसका होगा? नमाज का होगा। जिसका नमाज सही बाकी सारा सही। इसीलिए दाई जो है दुस्त ईमान की मेहनत करने वाले, इनको रोज रोज हमारा नमाज का तरक्की हो सके या ना हो सके इसका फिक्र करे। मियाँ जी मेहरब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जिसका नमाज जोहर और असर बराबर रहा, तरक्की नहीं हुआ असर में कुछ, तो इनका जमात नमाज घाट गया, पीछे चला गया। इसीलिए हर ईमान वालों को, हर मेहनत करने वालों को यह फिक्र हो कि जहर की नमाज से असर की नमाज मुझे अच्छा हो, असर से मगरिब से बेहतर हो, मगरिब से ऐशा और बेहतर हो, इसे हर वक्त लगे रहे। तो फरमाया कि तो फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज में हुस्न आते रहेगा और नमाज अच्छा बनते जाएगा। आखिरत में उसका क्या हिसाब होगा, इसमें पास तो बाकी सारे के सारे में पास हो जाएगा। दोस्तों, इसीलिए ऐसा नहीं कि भाई हम तो दावत की मेहनत कर रहे हैं और नमाज जैसा है ऐसा ही है, नहीं। इसीलिए इस नमाज को इल्म के साथ हो, गाफलत के साथ ना हो, अखलाक के साथ हो, और नमाज ऐसा हमारा नमाज नमूना बने। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, ये तो हमारा अपना सबकी जिम्मेदारी। इसके साथ साथ अल्लाह ने और एक जिम्मेदारी दिया, वो क्या है कि हम अल्लाह के खलीफा है इस जमीन पर। जैसे खुद हम अल्लाह की बंदगी अल्लाह करेंगे, ऐसे ही हम अल्लाह के खलीफा भी है। यहाँ खिलाफत से क्या मतलब है? खिलाफत से मतलब ये है कि जैसा कि अल्लाह जल्ल शानु व मनवालहू की जात और सिफत में वाहिद है, वो अपना सिफत का मजहर बंदा में देखना चाहते हैं। अल्लाह खाता नहीं खिलाता है, पीता नहीं पिलाता है, अल्लाह की कपड़ा का जरूरत नहीं, अल्लाह दूसरे को कपड़ा पहनाते, चाहते कि एक बंदा दूसरे के साथ ये मुआमला करे। इसमें सारे इंसान अल्लाह के खलीफा बन सकता है। ऐसा नहीं हर खलीफा अल्लाह के, हर इंसान अल्लाह के खलीफा बन सकते हैं। इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, अल्लाह ने फरमाया कि मैंने जमीन में आदम को खलीफा बनाकर भेजा। और अल्लाह ने कभी बंदा को ऐसा जिम्मेदारी नहीं देता, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, हर एक मालदार फकीर अल्लाह की खलीफा है। यह कोई मुल्क का सदर होने का शर्त नहीं। एक आदमी, इनका घड़ी का तिजारत, दोस्तों बेचारा इस गरीब की तिजारत बोरे तिजारत है। एक दिन अचानक एक आदमी आया, उसके हाथ में घड़ी, पूछा कि भाई इसका कीमत कितना है? बोले 1000 रुपया। ठीक है, मेरा घड़ी ले लो और मुझे पैसा दे दो। तो दुकान वाले पूछ रहे कि भाई ये बेचने क्यों चाहते हो, बेचने का क्या जरूरत है, ये तो आपके इस्तेमाल का है। आदमी गरीब है लेकिन गैरत है, कहते कि इसका आपको क्या जरूरत है, मुझे पैसा दे दो, घड़ी रख दो। बोले नहीं। उनकी काम करने वालों को हटाया और अपने पास बैठा, पूछा कि भाई आप घड़ी बेचने, मैं आपका भाई हूँ, बताओ क्यों बेचना चाहते हो? तो इसने कहा कि मेरा बीवी भी बीमार है, मेरा अम्मी भी बीमार है, रोजाना 200 रुपया का दवा लगता है, और मैं ऐसा आदमी हूँ कि रोजाना कमाता ही 200, तो ये खाने पीने में चले जाते हैं, तो मेरे बीवी और अम्मी का दवा की इंतजाम कैसे करे, इसलिए घर की सामान बेच बेच कर उनकी दवा के इंतजाम करता हूँ। इसकी आंख से आंसू निकल गया कि अल्लाह तूने मुझे इतना माल देकर रखा, इतना बड़ा तिजारत, और तेरे बंदा यहाँ तकलीफ में, मुझे खबर नहीं, तेरे सामने मैं कैसा मुंह दिखाऊंगा। कहा कि आपका घर किधर है? बोले उधर। सब पत्थर रख के कहा कि जाओ मैं आता हूँ, गाड़ी लेकर वापस हो, मैं तेरे घर में आ रहा हूँ। जाके गाड़ी निकाली घर से और अपने बीवी बैठा के साथ लेकर गया, अपने बीवी को अंदर में दाखिल कर दिया। बीवी ने इसकी अम्मी की सर पे हाथ रखी और उसकी बीवी की हाल पुरसी की और 1 महीना की दवा का सारा पैसा दिया और कहा कि और किसी चीज का जरूरत हो तो हमें इत्तला कर देना, और हर महीने की शुरू में आपको 1 महीना की दवा की पैसा मिल जाएगा। शहर में जो बड़े दुकान घड़ी का, ये हमारा नहीं आपका है। ये आदमी अल्लाह के खलीफा है। अभी बताइए, ऐसे दुकान पर कोई मुसीबत आए तो कोई गरीब घर में बैठे रहेगा? कोई कहेगा मेरे बीबी बेटी की शादी इस दुकान की बरकत से, कोई कहेगा कि मेरे घर में पानी गिरता था इसकी बरकत से अभी बंद हुआ, किसने कहेगा ये अल्लाह के खलीफा है। गरीब आदमी भी अल्लाह के खलीफा बन सकते हैं, अल्लाह ने बनाया हमको सबको। भाई दोस्तों और बुजुर्गों, वो क्या हुआ कि रात 1 बजे एक आदमी गाड़ी से उतरा, बड़े गठरी है, ले नहीं सकता, देखा इतने में एक आदमी जा रहे थे, गरीब आदमी,
वो उसके पास पहुंचे, भाई क्या इसको आपके घर तक पहुंचाना? बोले हाँ। बोले मेरे सर पर उठाओ। उठा दिया और ले लिया, अपने उसके घर पहुंचाया। बेचारा खुश ही हो गया कि यहाँ 50 रुपया ज्यादा है, लेकिन इसने खुश होकर के रात में इसने ये काम करके दिया, 100 रुपया दिया। तो इसने कहा कि नहीं आपसे नहीं लूंगा। बोले क्यों? बोले नहीं नहीं, मैं तो अल्लाह के लिए, रजामंदी के लिए मैंने ये खिदमत की, आपका लूंगा लेकिन आपसे नहीं लूंगा। अब दोगी तो थोड़ा, अल्लाह देगा ज्यादा, तुम दोगी खत्म हो जाएगा, अल्लाह दे तो कभी खत्म नहीं होगा। ये अल्लाह के खलीफा है। अब बताइए, वो गाड़ी लेकर जा रहे हैं और ये आदमी यहाँ खड़ा है कि उसको रास्ता में छोड़ के जाएगा? कहेगा कि तू कहाँ जाना चाहते है, तू तो भी रिश्ता है, गरीब आदमी और पैसा नहीं मिलता, इसे खिदमत, तो अल्लाह के खलीफा हो गया। दोस्तों ऐसा ही कोई हाकिम भी हो जाए, वो भी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रात आहत के जमाना में मदीना में चक्कर मार रहे हैं, असलम रजी अल्लाह अन्हु साथ में है। देखा इतने में ये सारा चीज दाई के लिए जरूरी है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देख रहा है, देखा इतने में मदीना के बाहर अतराफ में एक औरत कुछ पका रहे है और बच्चा रो रहे, मशहूर किस्सा है। दूर से पूछा औरत को, क्या हो गया, तेरे बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो औरत ने कही कि भूखे हैं इसीलिए रो रहे हैं। क्या पकाते हो? कुछ नहीं, पानी गर्म कर रहा हूं। क्यों? कि इन बच्चों के रोने से मेरा दिल दुखता है, तो मैं चाहता हूं कि वो खाने बना रहा हो इस उम्मीद में वो सो जाए तो थोड़ा सा मेरा आराम मिल जाए। पूछा तो कहा उमर रज़ी अल्लाह ने, तो तुम उमर को क्यों खबर नहीं दिया? बोले उमर को खबर नहीं दिया, उमर और हमारा मसाला काल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में फैसला होगा। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के आंसू आए। फरमाया उमर को कैसे खबर है आपकी ये हाल है? तो इस औरत ने कही कि क्यों नहीं ना होगा, वो हमारा अमीर है और हमारा खबर नहीं लेता, क्यों अमीर बने हैं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भागे, गया बैतुल माल रात में खोला। भाई और बुजुर्ग और दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बड़े बैग लिया, उसमें खाने पीने की चीज भर के उसको बंद किया। फिर असलम रज़ी अल्लाह अन्हु को फरमाया कि असलम मेरे पीठ पे उठाओ। उन्होंने फरमाया अमीरुल मोमिनीन। इस वक्त हजरत उमर रज़ी अल्लाह बहुत दुबला हो गया, सिर्फ रोटी और जैतून का तेल से जिंदगी गुजारता था। इस वक्त भाई बुजुर्ग और दोस्तों गुजारा होता उनका, तो कहा कि मेरे पीठ पे उठा दो। उन्होंने कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन मैं ले जाता हूँ। अरे असलाम, क़यामत के दिन तू मुझसे ले, मेरा तरफ से तू उठा लेगा? अरे ये मेरे पीठ पर उठा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने पीठ पे उठाया और इसको लाद के उस औरत के करीब पहुंचे। फिर ये नहीं कहा कि लो खाना पका के खाओ, कहा कि तू दूर हट जा। औरत दूर चला गया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ने खाना पकाना शुरू कर दिया। असलम रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह की दाढ़ी बहुत था, मैं देख रहा हूँ उनकी दाढ़ी के अंदर से धुएं निकल रहे हैं। खाना बन गया तो खाना बर्तन में रख के कहा कि आओ तुम्हारे बच्चों को खिलाओ, और दूर जाके बैठ गया। तो फरमाया अमीरुल मोमिनीन हजरत असलम रज़ी अल्लाह अन्हु ने, अमीरुल मोमिनीन चलिए रात बहुत कम हो गया, बाकी रहा, आप जाके थोड़ा सा आराम कर ले, काल भी वैसे ही तो खिदमत ही करना है। तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई असलम, मेरा दिल चाहता है जिस आंख से इन बच्चों को रोते हुए देखा, एक मर्तबा तो थोड़ा सा हाथ ले वो देख कर जाए। ये है अल्लाह के खलीफा। अल्लाह ने हमें तो इस काम के लिए दुनिया में भेजा, और हमारा जान और माल जो अल्लाह ने दिया है इस काम के लिए दिया है। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया खैरुन नास मन यनफउन नास, तुम में से बेहतरीन वही है जो क्या करते हैं, अपना जान और माल से दूसरों की नफा ऐसा नहीं करते। आज अल्लाह ने अपने फजल से हमको वो नबी वाला मेहनत दिया, इससे हमारा इसका मश्क हो कि हमारा जान माल ये हमारे बड़ी खर्च हो जाए, नहीं, ये तो अल्लाह के बंदों पर लगे और क़यामत के दिन हमको इसका बदला अल्लाह से मिल जाए। दोस्तों फिर अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने हम पर और एक जिम्मेदारी दिया। ये तो हमारे ईमान और ईमान की मेहनत ये हमारा जरूरत है, शुरू में बताया ये हमारा जरूरत है, और इस ईमान को सारे दुनिया में पहुंचाना ये हमारा जिम्मेदारी भी है। क्यों दोस्तों? अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने सरकार तो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने खातिमुन नबीन बनाया। ये फैसला अल्लाह ने कर दिया कि हमारे नबी की बात क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला नबी बादी वला उम्मतन बादकुम, तुम ही आखिरी उम्मत हो, तुम्हारे बाद कोई उम्मत नहीं और मेरे बाद कोई नबी नहीं। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह का यह सुन्नत था कि पहले नबियों को किसी कौम के लिए भेजता,
उनकी मैदान जुहूद मेहनत मुअय्यन था, जमाना भी महदूद था। एक जमाना में कई नबियों का आमद हुआ, 100 नबी, हजारों नबी एक ही जमाना में मेहनत करते थे। किसी कौम में 8-10 नबी मेहनत करते थे। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने जमाना दिया क़यामत तक। मैदान मेहनत पूरा दुनिया, मशरिक से मगरिब, शिमाल से जुनूब। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे यानी जो सियाह है, सुर्ख है, सफेद, सबके लिए अल्लाह ने मुझे नबी बनाकर भेजा। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह के रसूल फरिश्ता के लिए, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के लिए, जानवरों के लिए, सब मखलूक के लिए अल्लाह के रसूल रहमत बन करके आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ इसीलिए पहले जितने नबी आया इनकी दावत देखिए, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम इलाहुन गैरुहु। नूह अलैहिस्सलाम ने भी यही लफ्ज या कौम, अपने कौम को बुलाया। इसी तरह दोस्तों, हजरत हूद अलैहिस्सलाम या कौमी, सालेह अलैहिस्सलाम या कौमी, उनके पीछे या कौमी। ऐसा ही दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के लिए सूरह इब्राहिम में अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने फरमाया, अलिफ लाम रा किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुखरिजन नास मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। मैंने ये कुरान आपको अता फरमाई ताकि सारी इंसानियत को गुमराही के अंधेरा से हिदायत की रोशनी में लाए, उनको अंधेरा से, गुमराही के अंधेरा से निकाल कर हिदायत की नूर पर लाए। उसी सफा में सामने जाके अल्लाह ने फरमाया, वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना अन अखरिज कौमक मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर। मैंने आपको दलील देकर भेजा। बहुत 9 लंबे बड़े बड़े अलामतें मूसा अलैहिस्सलाम को मुजज़्ज़ा दिया था। तो ये आप दिया ताकि आप अपने बनी इसराइल को, अपने कौम को अंधेरा से, गुमराही के अंधेरा से हिदायत की रोशनी में लाए। दोनों बात में फर्क है नहीं। इनको सारी इंसानियत को निकालना और उनको अपने बनी इसराइल, अपने कौम को निकालना, मैंने मेहनत एक ही है, लेकिन इनको पूरे इंसानियत दिया और उनको बनी इसराइल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, या बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम, आए बनी इसराइल, मैं तो तुम्हारे लिए रसूल बनकर आया हूँ। ये तो धोखा की बात है। ईसा अलैहिस्सलाम पूरे दुनिया के लिए नहीं, बनी इसराइल खुद फरमा रहे, या कौम बनी इसराइल इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने भेजा। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की तरतीब बहुत अजीब है। वो क्या है कि पहले नबियों का हयात बहुत लंबा मिल गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल दुनिया में हयात मिला, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 1400 साल, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 175 या 200 साल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 120 या 130 साल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 100 साल दुनिया में उनको जिंदगी मिला। शुआइब अलैहिस्सलाम को बहुत लंबा जिंदगी मिला। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जिंदगी कितना दिन मिला? 63 साल। नबी कब बने? 40 साल। गया 40 साल, बाकी रहा 23 साल। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने अगर नूह अलैहिस्सलाम का भी उम्र दे देता तो भी काफी नहीं था, लेकिन 23 साल में इतना बड़ा मेहनत कैसा पूरा हो। इसलिए दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने जिस दिन हमारे सरकार को पूरे आलम के लिए नबूवत अता फरमाई, उसी दिन अल्लाह ने उनकी उम्मत को नियाबत अता फरमाई। इसीलिए ये पूरे उम्मत, बड़ा छोटा, मर्द औरत, दोस्तों, लिखे पढ़े अनपढ़, सारे के सारे सब उम्मत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाइब है। हम अल्लाह के खलीफा भी है, अल्लाह के नबी के नाइब भी। अल्लाह ने बनाया, कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, इसीलिए जो भी कलमा पढ़े, सबसे पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कलमा पढ़ा, मक्का मुकर्रमा के खास लोगों के पास जाके इन्होंने को दावत दी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बच्चों में सबसे पहले इन्होंने मक्का मुकर्रमा में बाहर से जो आते इन्हों को अल्लाह की तरफ बुलाते। ज़ैद इब्न हारिसा गुलामों में सबसे पहले इन्होंने कमजोरों को दावत दिया। उम्मुल मोमिन खादिजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्होंने सबसे पहले औरतों में ईमान लाया।
औरतों को बात समझाई। दोस्तों इन्होंने समझा कि अल्लाह ने हमें जान और माल जो दिया है इस दुनिया में, ये काम के लिए दिया है अल्लाह ने। तो अल्लाह जल्ल शानो अम्माना वालों ने पिछले नबियों के साथ जो नसरतें और मददे की मुआमला किया, अल्लाह ने सहाबा के साथ वही मुआमला किया। दोस्तों अल्लाह जल्ल शानो अम्माना वालों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए मैदान दावत में आग को मुसख्खर कर दिया। आग में अल्लाह ने उनको हिफाजत की। अल्लाह जल्ल शानो अम्माना वालों ने इस उम्मत की तमीमेदारी को हजरत उमर रज़ी अल्लाह के खिलाफत के जमाना में उनको अल्लाह ने क्या ताकत दी कि उन्होंने आग बाहर से निकल आया, इस आग को पिटाई करके, जैसा कि हैवान को पिटाई करके ले जाते हैं, चाहे गौ को, बकरी बकरा को, इसी तरह पिटाई कर करके आग को गार में वापस कर दिया। फरमाया गार इर्जी इलन्नार। उमर रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि हमने मुआमला तो खुद आग से देखा, उम्मत क़यामत तक सुनेगा लेकिन देखा नहीं। लैसल खबर कल मुआयना, खबर और सुनना और देखना बराबर नहीं। तमीमेदारी ने आग के साथ किया इतना बड़ा आग कैसे पिटाई करके उन्होंने वापस घर में ले गया। दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए बहर अहमर को मुसख्खर कर दिया। हजरत अली हजरमी रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना से अल्लाह ये नियाबत के काम को लेकर निकले। तो भाई दोस्तों जब वहां पहुंचे तो अचानक वो लोग भाग गए, समुद्र से गुजर कर किश्ती पर बैठ के बहरीन पहुंच गया। तो हम उनके साथियों ने फरमाया कि कैसे हम जाए, हो तो चला गया। उन्होंने फरमाया हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह के रास्ता में निकला हुआ, ये समंदर अल्लाह की मखलूक है, हम अल्लाह की कलमा तो वहां तक पहुंचाना है। या अली या अज़ीम या हलीम या करीम नहनु अबीदुका खरजना फी सबीलिका इजअल इलैहिम सबीला। ये दुआ पढ़ी करके रावी फरमाया है कि हमारा अमीर साहब सबसे पहले घोड़ा को लेकर समंदर में कूद पड़े। हम 350 के ऊपर पूरा जमक समंदर में हम घुस गए और चलते चलते समंदर की इस तरफ से उस पार चला गया। और 1-2 किलो नहीं, तकरीबन 27 या 28 किलो उन्होंने समंदर पर गुजरे। फिर रावी ने फरमाया कि मेरे दिल में है कि मेरे घोड़े की टाप में कोई पानी लगा या नहीं देखना चाहा। तो उन्होंने फरमाया मेरे घोड़े की पैर के नीचे देखा तो वल्लाहि मा बल्लत हवाफिरु खुयूलिना, अल्लाह की कसम हमारे घोड़ों के पैर के नीचे एक कतरा पानी भी नहीं लगे। जअलल्लाहु लनल बहरु कल बर्री, अल्लाह ने समंदर को खुश्की बना दिया हमारे लिए। जैसे कि हमारे घोड़ा रेत पर चला, समंदर पर बराबर चलते रहे। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ पर आसमान से उनकी उम्मत के लिए खाना उतारा। ये सहाबाई किराम की जमात अल्लाह के रास्ता में फिर रहे थे, खाना खत्म हो गया, दरख्त की पत्ता खाते खाते उनकी मुंह खराब हो गया। इतने में अल्लाह ने समंदर से मछली निकालकर उनकी पूरे जमात के खाने का इंतजाम किया। भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवा को मुसख्खर कर दिया, हजरत उमर रज़ी अल्लाह के लिए भी मुसख्खर कर दिया। उमर रज़ी अल्लाह मदीना में मिंबर पे और उनका जमात ईरान में। उस वक्त ऐसा ही कोई सैटेलाइट नहीं था जिससे वो देखा, अल्लाह ने खोल दिया। यहाँ से वो फरमाने या सारिया जबल, आए सारिया पीछे तुम पहाड़ की तरफ पीठ लगाओ। वो उधर से सुन रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। दोस्तों वो कोई मशीन के जरिए से नहीं। भाई और बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहु ने जानवरों को और शहीद दरिंदों को अल्लाह नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने मुसख्खर किया। हुजूर सल्लल्लाहु की उम्मत को जब वो अफ्रीका पहुंचे, उक़बा बिन नाफ़े रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा किराम और ताबीन थे, वो लोग वहां पहुंचे तो जाके रात में बस्ती में ठहरना नहीं दिया, तो जंगल में दाखिल कर दिया बिल्कुल। और शेर और भेड़िया और उनका आवाज शुरू हुआ। सबने कहा कि आमिर साहब अब तो सब खा लेगा हमको रात में। इन्होंने शायद दरख्त की पत्ता में लिखा, आए जंगल वाले सुन लो, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आया हो अल्लाह की कलमा को पहुंचाने के लिए, तो इसीलिए तुम 3 दिन के अंदर जंगल खाली करो वरना तुमको कत्ल कर दिया जाएगा। रावी ने फरमाया सबा देखा हमने, जंगल खाली, शेर अपने बच्चा मुंह में लेकर, सांप बिच्छू अपने बच्चा समेत जंगल खाली करके चला गया। भाई दोस्तों, जिस जंगल में इन्होंने आवाज लगाया, इस जगह में अब बहुत बड़े शहर, एक जमाना मुसलमान का उस यानी अफ्रीका का दारुल खिलाफत भी था, इसका नाम है खैरवान, जो अभी मौजूदा ट्यूनिसिया में है, ट्यूनिस में है, मदीना खैरवान। भाई बुजुर्गों दोस्तों, कितने जमाना पहले इन्होंने आवाज, सारे जंगल खाली हो गया। इसीलिए दोस्तों अंबिया अलैहिस्सलाम को जितना नसरत और मदद अल्लाह ने किया, सारा हजरत सहाबाए किराम को मिला।
भाई दोस्तों और बुजुर्गों, सहाबाई करम ने जिस अल्लाह और जिस रसूल पर ईमान लाया, जो काम किया जिससे अल्लाह ने इनको ईसाई नुसरत और मदद किया, वो आज भी हमारे सामने है। बस इतना है कि हम हमारे जो नियत है, ये नियत को बदलना पड़ेगा। हमने नियत बना लिया कि दुनिया के काम करते हुए मौका मिले तो उसमें दीन की काम कर ले। सहाबाए किराम का यह था कि भाई हम तो अल्लाह के दीन के लिए है, हमारा जान माल अल्लाह के दीन के लिए है, हम तो अल्लाह के दीन के काम करते करते फुर्सत मिल जाए तो कुछ दुनिया के काम कर लेंगे। भाई बुजुर्ग दोस्तों, सहाबाए किराम ने जान लगाई, माल लगाई, घर उजाड़ किया। ज्यादा जमाना नहीं लाया अल्लाह ने, 25 साल के अंदर 23 साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और 2.5 साल हजरत सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह के, ये सहाबाए किराम को लगाने की वक्त था। इन्होंने अपने घर को झाड़ू मार के अल्लाह के रास्ते में दिया, खाली करके लगाया। फिर अल्लाह ने इसे दिया कि 10 साल के अंदर अल्लाह ने इतना दिया कि इन्होंने 100 साल अगर दुनिया के लिए मेहनत करता तो इतना दुनिया उनको नहीं मिलता। वो खुद उन्होंने खाया और उनकी नस्लें खाते जा रहे थे। भाई और बुजुर्गों और दोस्तों, और फायदा कितना हुआ? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमाना में हिजाज मुकद्दस में इस्लाम जिंदा हुआ। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की जमाना में हिजाज और गुजर कर वो क्या कहते हैं, खालिद से गुजर कर ईरान और शाम में और फारिस में दाखिल होना शुरू हुआ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाना में जाकर 22 लाख मुरब्बा किलो इस्लाम जिंदा हो गया। फिर 12 साल हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जमाना आया तो इतना इस्लाम जिंदा हुआ कि और 22 लाख मुरब्बा मैल इस्लाम जिंदा हो गया। तो हजरत यानी उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की जमाना में जाके ऐसा ही और ज्यादा इस्लाम का तरक्की हुआ। तो दोस्तों और बुजुर्गों और भाइयों, अब हमने इस काम जो अपना है और इसी के लिए हमारा जाना और माल लगाना, दोस्तों जिसने जितना कुर्बानी देगा अल्लाह उस पर काम को इतना खुलता रहेगा और इसके अंदर वो इस काम का जितना सिफत जरूरत है अल्लाह वो खुद उसको नवाजेगा। सारे अंबिया अलैहि सलाम को अल्लाह ने पहले सिफत दिया, फिर उनको यानी अब अल्लाह की तरफ से सिफत मिल गया और इन्हों को अल्लाह जल्ल शान ने फिर काम दिया। और अल्लाह ने हमें काम दिया, हमारे अंदर ये सिफत है नहीं, इसलिए हम जब मेहनत करते रहेंगे तो इसके लिए जो अखलाक का जरूरत है, जो चीजों का जरूरत है, इसार भाई दोस्तों सारा चीज हमारे अंदर आएगा। सहाबाए किराम ने जब कुर्बानी दिया तो इंसाफ कायम हुआ, फिर एहसान की सिफत आए, फिर इसार हो गया। बगैर खाए खुद बीवी और बच्चा सबको भूखा रखा और मेहमान को सारा खिला दिया। ये मंजर बहुत ही कम मिलेगा दुनिया में। और ये अपना रिश्तेदार नहीं, अल्लाह के मेहमान है, सब खिला दिया। वहां तक पहुंचे, अल्लाह हमको भी वहां तक पहुंचाएगा। अब हमारा कहाँ जाना है दोस्तों? मंजिल सामने ना हो तो आदमी काम रास्ता में छोड़ देता है या रास्ता बदल देता है। हमारा निशाना रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को दीन की जिस सतह पर छोड़ के गया, हम वापस वहां लौटना है। इस काम के जरिए से हमें मकसद वही है। लेकिन दोस्तों जो कमी हो गया, इसीलिए हम उम्मत की तरफ से सब इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह से माफी मांगे और आइंदा के लिए हम नियत करें कि हमारा पूरा जिंदगी इस काम के लिए है। तो भाई सब तैयार है ना इंशाअल्लाह इसके लिए? तो शुरू करना है हमें साल से, 4 महीना से पहले 4 महीना हो जाए, 4 महीना, फिर कोशिश करेंगे हर साल हमारा 4 महीना लगे। और जिनके 4 महीना तरतीब से हो गया 1-2 मरतबा तो हम साल लगाए। 7 महीना अंदरूनी मुल्क में हो या बैरूनी मुल्क में,